Okay, so in the last discussion we have discussed about MySQL different functions that we used to run. Okay, उसमें किसी को कोई problem रहेगा? Any problem, any issue that you faced? I hope everybody is working on the practice part which I have given you. Yes, sir. Okay, great. Or those who are not able to complete it or finish it, no problem, try to finish it today. So आज और कल में हम लोग MySQL finish करने की कोशिश करेंगे and sorry. So आज भी हम कुछ MySQL के aggregation functions and other things visit करते हैं, देखते हैं, and then tomorrow we are going to club it with the Python. ठीक है? Because there are many things in MySQL to cover or to finish up. So वो एक बार finish कर लेते हैं, and then we are going to try and understand how we can connect MySQL with Python. ठीक है? So let's start with few more functions. But before that, अगर कोई problem रहता है, कोई issue है, तो you can tell me. We can discuss that and address it. Any issue? No issue? Okay. So last time पे हमने देखा था how we can use and utilize MySQL in different ways. Like we have discussed about many functions in MySQL. उसमें हम लोगों ने देखा था how to create a database. After creating a database, how to insert the data in the database by insert into function. फिर उसके बाद insert into के बाद हम लोगों ने देखा था कि after insert into, ये अलग अलग ways थे उसके अंदर insert into में. So the syntax for insert into is insert into, then database का नाम, that is the name of database, and the values that you want to insert. अगर आप सिर्फ values function use कर रहे हैं, तो जो भी value आप डालेंगे that should be in exact sequence as it is there in the database. जो भी database का sequence है, उसी database के sequence में आपको use करके वो value को डालना रहेगा. If you are not following the syntax or following this sequence, then जो भी पहला रहेगा that is going to go in the first column. जो दूसरा आप यहाँ पे डालेंगे वो दूसरे में जाएगा, तीसरा थर्ड में जाएगा, फोर्थ वाला फोर्थ में जाएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. अगर आपको कुछ पर्टिकुलर कॉलम्स को ही फिल करना है, तो फिर हम लोगों ने देखा था कि सिर्फ हम कॉलम्स के नेम मेंशन करेंगे एंड देन उसके अलॉन्ग विथ वैल्यूज मेंशन करेंगे. तो जो भी आपने नेम्स यहाँ पे कॉलम्स के लिए हैं, उन्हीं नेम्स पे ऑटोमेटिकली वो वैल्यू मैप हो जाएगी. दैट इज ऑल्सो वी हैव सीन insert into में. ठीक है? देन उसके बाद हम लोगों ने distinct function देखा था, which is actually to find out the distinct value or unique values from the database. Right? वो भी हम लोग देख चुके हैं. Now next thing is हम लोगों ने देखा था distinct. देखने के बाद हम लोगों ने distinct का यूज किया था. You can revise the discussion and can see it in detail. Then उसके बाद insert into और unique के बाद हम लोगों ने और भी देखा था, where clause देखा था. Where clause में if you want to select a specific thing, guys कुछ background noise तो नहीं आ रहा है आप लोगों को? थोड़ा सा आ रहा है पर ठीक है सर, चलेगा. Minor है ना? Because I have started a software to filter the background noise. तो आइडियली आना नहीं चाहिए. Okay, so now another thing is हम लोगों ने देखा था कि how we can work with where clause. So where clause is something जहाँ पे आपको कुछ particular column में से कुछ select करके लाना है. Like इस पूरे टेबल में से from this table, if you want to select from this table, if you want to select all those person IDs whose value is 1 2 3, तो वैसे हम लोग इसको रन कर सकते हैं 1 2 3 person ID वाले. और along with person ID, if you want to make a filter on city, मतलब वो सारे records जिनमें आपके पास person ID 1 to 4 है and then city is Pune, then is there any record of such value? So yes, there is a record with 1 to 4 and city as a Pune.
तो यहाँ पे आप एंड भी लगा सकते हैं, एंड इज समथिंग विच इज गोइंग टू क्लब टू डिफरेंट वैल्यूज। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग इज और। तो और में क्या होगा, और में आइदर वन और सेकेंड, दैट इज समथिंग वी आर गोइंग टू लुक एट, मतलब या तो पहला ट्रू हो या फिर दूसरा ट्रू, दोनों में से एक ट्रू होना चाहिए, तो और हम लोग लेंगे। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया था कि या तो सिटी पुणे हो या फिर पर्सन आईडी 1 to 4, ऐसे दोनों में से कोई एक रिकॉर्ड हमको निकाल के दो, तो वो भी हम लोगों ने सिलेक्ट किया था। ठीक है, दैट इज व्हाट वी डिड। देन उसके बाद नॉट और इन क्लॉज भी लिया था। इन मतलब क्या था, इन मतलब हमारे पास है कि अगर मल्टीपल सिलेक्शंस करने हैं, मतलब हम लोगों को इस डेटाबेस में से वो सभी पर्सन आईडी निकालने हैं जिनकी वैल्यू या तो 1 to 3 हो या 1 to 4 हो या 1 to 5 हो। सो वो सारे पर्सन आईडी जिनकी वैल्यू या तो 1 to 3 हो, 1 to 4 हो या 1 to 5 हो, वो अगर निकाल के लाने हैं तो या तो हम इस तरह से क्वेरी लिख सकते हैं कि पर्सन आईडी इज इक्वल टू 1 to 3, या फिर पर्सन आईडी इज इक्वल टू 1 to 4, और पर्सन आईडी इज इक्वल टू 1 to 5। बट ऐसा लिखने से क्वेरी बहुत लंबी हो जाती है एंड इट इज नॉट रियली एफिशिएंट वन टू डू। अगर आप इसको सिस्टम पे भी देखेंगे तो सिस्टम पे भी इतना इजी नहीं होगा, सिस्टम पे भी हेवी होता है ये क्वेरी। सो दैट इज समथिंग विच वी शुड अवॉइड। और वो अवॉइड करने के लिए क्या किया जाए, तो टू अवॉइड दैट व्हाट वी आर डूइंग इज कि हम लोगों ने क्या किया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस पर्सन्स टेबल, और यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है इन क्लॉज। तो इन क्या करता है, इन एक्चुअली सर्च फॉर दिस पर्सन आईडी इन दीज वैल्यूज। सो पर्सन आईडी इन सभी वैल्यूज में से कोई भी रहेगा, सो दैट पर्टिकुलर कंडीशन, इफ दैट कंडीशन इज सेटिस्फाइड, सो इट इज गोइंग टू थ्रो द रिजल्ट्स। दैट इज व्हाट इट गिव्स। ठीक है, तो ये इन क्लॉज के थ्रू हम लोगों ने देखा था। तो इनका पर्पस क्या है, इनका पर्पस है कि आइदर कंडीशन दिस इज ट्रू और दिस इज ट्रू और दिस इज ट्रू। तो या तो आप इसको पूरा स्टेटमेंट को आप इस तरह से लिखिए, इफ यू आर राइटिंग इट लाइक दिस दैट इज ऑल्सो फाइन, और यू कैन राइट इट लाइक दिस एज वेल, इट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ दिस स्टेटमेंट, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, देन उसके बाद हम लोगों ने एंड और नॉट कंडीशंस देखा, जो मैं अभी आपको बताया। सॉरी। देन उसके बाद अगला हमारे पास आया है ऑर्डर बाय। तो ऑर्डर बाय क्या था, ऑर्डर बाय मतलब हमारे पास ये जो रिजल्ट दिख रहे हैं दे आर इन द रैंडम ऑर्डर। रैंडम ऑर्डर मतलब उनका कोई सीक्वेंस नहीं है, उनका आई वुड से प्रेफरेंसेस नहीं है। लाइक 1 to 5 के बाद 1 to 4 आ रहा है, तो दे आर नॉट इन ऑर्डर। 1 to 5 के बाद 1 to 4 आ रहा है, दे आर नॉट इन ऑर्डर। अगर आपको इसको ऑर्डर में करना है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, जमाना है, तो हाउ कैन वी अरेंज इट, हाउ कैन वी अलाइन इट। तो वो अलाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर बाय क्लॉज यूज करना पड़ेगा। एंड ऑर्डर बाय हाउ इट इज यूज्ड, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम देन डेटाबेस नेम एंड देन उसके बाद ऑर्डर बाय। तो ऑर्डर बाय आपको यूज करना पड़ेगा। वो ऑर्डर बाय आपने यूज किया और ऑर्डर बाय के साथ आपको फील्ड का नाम देना पड़ेगा, किस फील्ड को आपको अरेंज करना है, ऑर्डर करना है। तो जैसे आपने पर्सन आईडी डाल दिया, तो ये पर्सन आईडी को अरेंज कर देगा बेस्ड ऑन इट्स डेटा टाइप। ठीक है, तो पर्सन आईडी को इसने डाल दिया, और जैसे इसको आप रन करेंगे, सो यू कैन सी बाय डिफॉल्ट इट इज इन असेंडिंग ऑर्डर। बाय डिफॉल्ट ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। इंक्रीजिंग मतलब सबसे छोटा, देन उससे बड़ा, देन उससे बड़ा, देन उससे बड़ा। ठीक है, इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में आता है। कई बार ये भी रिक्वायरमेंट होती है कि भाई हमको असेंडिंग नहीं चाहिए, हमको डिसेंडिंग चाहिए, रिवर्स ऑर्डर है, मतलब पहले सबसे बड़ा, देन छोटा एंड देन छोटा, वैसा करना है तो वो भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट हमारे पास असेंडिंग होता है, बट अगर इसको कंट्रोल करना आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर है या डिक्रीजिंग ऑर्डर है, वैसा करना है, तो अगर आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में डालना है तो उसको लिखना पड़ेगा डिसेंडिंग। डिक्रीजिंग ऑर्डर को डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको कंट्रोल करना है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में डालना है, सो यू कैन कंट्रोल इट बाय मेंशनिंग असेंडिंग। सो ये हमारे पास दो कीवर्ड है, ASC और DESC। ठीक है, जहां पे ये ब्लू हो जाता है आप समझ जाओ कि आपने सही कीवर्ड लिखा है। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखेगा और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेगा। क्लियर, बहुत सिंपल है, करेक्ट। फिर हम लोगों ने अपडेट क्वेरी देखी थी। अपडेट में क्या था, अपडेट मतलब इफ यू वांट टू अपडेट अ टेबल,
लाइक यहाँ पर हमारे पास कुछ लिखा हुआ है टेस्ट लास्ट नेम और मे बी फर्स्ट नेम, तो यहाँ पे लिखा हुआ 1 to 4 अपडेटेड, एंड सपोज यहाँ पे जो फर्स्ट नेम है दैट इज नॉट रियली वेरी गुड लुकिंग, और मे बी द एड्रेस, अगर ये लास्ट नेम हमारे पास, ये फर्स्ट नेम हमारे पास ठीक से दिख नहीं रहा है, इसको अपडेट करना है, कुछ नया नाम डालना है इसमें फर्स्ट नेम में, हाउ वी कैन डू इट। तो अगर हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है उसमें फर्स्ट नेम आपको अपडेट करना है, ठीक है, कैसे कर सकते हैं। सो टू अपडेट you have to write update query, and then in update you have to write table name, then you want to update this table name, इस table name को आपको अपडेट करना है। अब इसको अपडेट करना है तो कैसे अपडेट करना है, तो हम बोल रहे हैं कि सेट करो, दैट मीन्स अपडेट व्हाट, इसमें अपडेट करो, क्या करो, फर्स्ट नेम इज इक्वल टू, तो फर्स्ट नेम को आपको क्या डालना है, HGJ133 समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, उसको हाँ HGJ133 को कुछ नया नाम डालना है, सो दिस इज अपडेट सपोज, ऐसा कुछ करके डालना है। तो जो फर्स्ट नेम था उसको आपको दिस इज अपडेटेड डालना है, और वो आपने डाला और इसको रन किया, क्या अपडेट हो जाएगा, विल इट अपडेट, विल इट अपडेट। नो सर, वेयर क्लॉज लगाना पड़ेगा कि किसके इक्वल टू आप चेंज करना चाहते हैं, करेक्ट, आईडी इक्वल टू 7 हो 9 हो या कुछ ऐसा। करेक्ट, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे सिर्फ लिख दिया फर्स्ट नेम, ये आपको बहुत ध्यान से क्वेरीज रन करना होगी माइंड में, ये क्वेरीज आप लोगों को बहुत ध्यान से रन करना होगी व्हेनेवर यू आर वर्किंग विद एनी बॉक्स, क्योंकि ये सीधे आपका डेटाबेस टेबल अपडेट कर देती है। अब अगर आपने सपोज इसको आपने रन कर दिया, लेट मी रन इट एंड शो यू, तो अगर आपने इसको रन कर दिया, आपको अपडेट करना था ये, इसको चेंज करके ये लिखना था, बट आपने इसको बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे डायरेक्टली अपडेट कर दिया तो क्या होगा देखते हैं, क्या हुआ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फर्स्ट DB डॉट फर्स्ट। तो आपने जैसे अब रन किया, आप ये देखो इसने क्या करा, इसने इसको अपडेट करना था हमको, बट इसको अपडेट करने की जगह इसने सभी को अपडेट कर दिया, राइट। सो यू शुड बी वेरी केयरफुल बिफोर डूइंग दैट, एंड एक बार आपने ऐसा किया तो अब मेरे पास जो पुराना डेटा था वो सब चला गया, अब मैं ऐसा नहीं कि पहले जो इसमें लिखा था उस वाले वर्जन पे आ सकता हूँ, ठीक है। तो वो एक हमारे लिए हमेशा प्रॉब्लम वाली चीज रहती है जब भी अपडेट क्वेरी, डिलीट क्वेरी, इस तरह की आप क्वेरी चलाते हैं। जहां तक सिलेक्ट क्वेरी चलाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप चला सकते हो सिलेक्ट क्वेरी में, सिलेक्ट क्वेरी सिर्फ सिलेक्ट करके लाती है, डेटाबेस पे कोई फर्क नहीं डालती, तो ये रिस्की नहीं होती है। बट एट द सेम टाइम जो अपडेट क्वेरी रहती है वो बहुत रिस्की होती है, क्योंकि इसको जैसे ही आप चलाते हैं तो ये डेटाबेस को ही डायरेक्ट अपडेट कर देती है, तो डेटाबेस को अपडेट किया मतलब क्या होगा कि आपका पूरा टेबल अपडेट हो जाएगा, ठीक है, देन यू विल नॉट बी एबल टू रिकवर इट बैक, तो आपको वो वापस नहीं मिलेगा। यहाँ पे मेरे को अगर पुराने डेटाबेस पे आना है, यहाँ पे क्या लिखा था वो वापस लाना है, तो मेरे लिए मुश्किल है, अनटिल कि मैंने उस पर वर्जनिंग या दूसरी चीजें नहीं लगाई है, ठीक है। तो ये बहुत रिस्की होता है, इसलिए ध्यान से दो, और जब भी रन करते हो तो 2 बार रिव्यू करो क्वेरी को बिफोर रनिंग इट टू प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। पहले उसको टेस्ट एनवायरनमेंट पे चेक कर लो कि क्वेरी बराबर है या नहीं है, अगर ये है तो ही अपडेट करो, नहीं तो नहीं करो, ठीक है। क्लियर, कोई डाउट है इसमें? ऑल गुड, आगे बढ़ूं मैं? यस सर। ओके, नाउ अभी हमने बोला कि हमको अपडेट तो ये करना था, पर हमने सब कर दिया, पूरा अपडेट हो गया बाय डिफॉल्ट, तो ये कैसे अपडेट हो सकता था? तो ये अपडेट होने के लिए हमको बताना पड़ेगा कि भाई किसको अपडेट करना है। हमने तो सिंपल बोला कि अपडेट कर दो इस टेबल को, अपडेट दिस टेबल, जहां पे फर्स्ट नेम अपडेट कर दो इस टेबल को, और उसमें हमने बोला कि फर्स्ट नेम में ये वैल्यू डाल दो, अपडेट दिस टेबल एंड पुट दिस वैल्यू टू फर्स्ट नेम, ऐसा हमने बोल दिया, विच इज नॉट एक्चुअली राइट, क्योंकि ऐसा हम बोल रहे हैं कि इस पूरे टेबल को अपडेट करो और उसमें जहां जहां पे फर्स्ट नेम लिखा है उस पर दिस इज अपडेटेड डाल दो, विच इज नॉट राइट। तो क्या डालना पड़ेगा कि हमको अपडेट करना है, सपोज इसको अपडेट दिस इज अपडेटेड की जगह लिखना है दिस इज अगेन अपडेटेड, ये ऐसा लिखना है। तो ये लिखने के बाद हमको ये बताना पड़ेगा कि किसमें लिखना है, तो उसके लिए किसमें लिखना मतलब स्पेसिफिक रिकॉर्ड को बताना है। अगर आपने ये नहीं बताया तो इसका मतलब सभी को करना है, बट हमको सबको नहीं करना, हमको कुछ स्पेसिफिक को ही करना, मतलब सपोज इसको करना है, तो यहाँ पे हमको कुछ बताना पड़ेगा कि कैसे हम इस रिकॉर्ड तक पहुंचे। तो इस रिकॉर्ड तक पहुंचने का तरीका क्या है, वेयर, और वेयर के अंदर आपको डालना पड़ेगा पर्सन आईडी इज इक्वल टू 1 to 1, ये आपको डालना पड़ेगा, या कुछ भी आप डाल दो, पर्सन आईडी इज इक्वल टू 1 to 1, या लास्ट नेम इज इक्वल टू दिस,
या फिर एड्रेस इज इक्वल टू दिस, या फिर कुछ भी आप डाल दो, है ना। बट अगर आपने मान लो डाल दिया सिटी इज इक्वल टू पुणे, तो जैसे ही आपने सिटी इज इक्वल टू पुणे डाला तो इसका मतलब ये दोनों रिकॉर्ड उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, तो दोनों अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, सो अगेन यू हैव टू सिलेक्ट दिस वेयर क्रॉस केयरफुली कि वो यूनिक हो, यानी वो एक बार में एक ही हो। अब इसको आप रन करेंगे, देखिए क्या होता है। एंड नाउ यू कैन सी दिस इज अगेन अपडेटेड, तो सिर्फ ये अकेला रिकॉर्ड अपडेट हुआ है। इफ आई विल रिमूव दिस एंड ट्राई टू अपडेट, तो सभी अपडेट हो जाएगा, अदरवाइज सिर्फ एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड ही अपडेट होगा। ठीक है, नाउ ये अपडेट विथ वेयर हम लोगों ने देखा। डिलीट के लिए हमने देखा था कि अगर डेटाबेस टेबल डिलीट करना है तो क्या करना पड़ेगा, डिलीट फ्रॉम एंड देन डेटाबेस का नाम। अगर आपको पूरा डेटाबेस क्लीन करना है तो कुछ भी यहाँ पे वेयर मत डालो, ये नहीं डालोगे तो पूरा डेटाबेस क्लीन हो जाएगा। बट अगर आपने ये डाला है, वेयर क्लॉज डाला है, तो सिर्फ जो आपने रिकॉर्ड मेंशन किया है वही डिलीट होगा, है ना। तो ऐसा ये वर्क करता है। जैसे एक मिनट जैसे 1 मिनट का टाइम दो मुझे, मैं जगह चेंज करता हूँ, बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज्यादा आ रहा है, शायद आप लोगों को भी लग रहा है क्या, या मुझे ही लग रहा है? नहीं सर, इतना नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा, ठीक है, मतलब वो सॉफ्टवेयर के कारण आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही है, देन इट्स फाइन। क्योंकि जैसे मैं पॉज करता हूँ बहुत हेवी नॉइस आता है, इसलिए मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। नहीं सर, यहाँ पे तो कंफर्टेबल है। ओके, देन कंटिन्यू करते हैं। सो नाउ डिलीट फ्रॉम, तो डिलीट किस लिए होता है, डिलीट क्वेरी होता है कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए। अगर पूरा टेबल आपको डिलीट करना है तो पूरा टेबल डिलीट करने के लिए मैंने आपको फंक्शन बताया था, कमांड बताया था, कौन सा था वो, इफ यू वांट टू डिलीट एंटायर टेबल, हाउ टू डिलीट फुल टेबल, सर ड्रॉप टेबल। ड्रॉप टेबल, वंडरफुल। तो ड्रॉप टेबल के थ्रू आप पूरा टेबल डिलीट कर सकते हो। बट अगर आपको पूरा टेबल डिलीट नहीं करना है, उस टेबल में से कुछ पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स को ही डिलीट करना है, तो पहले आपको वो रिकॉर्ड को सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन से रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हो, लाइक ये करना है, ये करना है, या क्या करना है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ये क्या करेगा, अगर आपने सिर्फ इतना रन कर दिया, अगर आपने सिर्फ इतना रन कर दिया तो ये क्या करेगा, डिलीट फ्रॉम दिस दिस दिस, मतलब वो कुछ उसके पास फिल्ट्रेशन नहीं है, मतलब वो सारे रिकॉर्ड्स को इसमें से क्लीन कर देगा। वो हमको नहीं चाहिए, पूरे रिकॉर्ड इसमें से क्लीन नहीं करवाने, राइट। हमको सारे रिकॉर्ड डिलीट नहीं करने, हमको सिर्फ एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड डिलीट करना है, या 2 पर्टिकुलर रिकॉर्ड, या कुछ पर्टिकुलर रिकॉर्ड ही डिलीट करना है। जैसे वेयर पर्सन आईडी इज इक्वल टू 1 to 4 लिख दो, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो वेयर सिटी इज इक्वल टू पुणे। तो अगर आपने लिखा सिटी इज इक्वल टू पुणे, जैसे ही आपने लिखा सिटी इज इक्वल टू पुणे, तो वो सारे रिकॉर्ड्स जिसमें सिटी पुणे लिखा हुआ था वो पूरा डिलीट हो जाएगा। अगर आपने ऐसा किया तो वो सभी रिकॉर्ड जिसमें सिटी इज इक्वल टू पुणे लिखा था वो सारे रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है, सो दिस इज हाउ डिलीट वर्क। सो लेट मी शो यू। ये गया, इसके बाद एक बार से फिर से सिलेक्ट किया, तो देखो दोनों रिकॉर्ड सिर्फ बचे हैं, बाकी सब डिलीट हो गए। ठीक है, नाउ एनीबॉडी वुड लाइक टू हेल्प मी विद द इंसर्ट फंक्शन। मेरे को यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड और डालने हैं, तो जल्दी से इंसर्ट फंक्शन बताओ कैसे लिखूं मैं। इंसर्ट टेबल नेम आएगा, मतलब वो डेटाबेस डॉट टेबल नेम। हेलो, या सुनाई दे रहा है मुझे। फर्स्ट डीबी डॉट पर्सन्स, हाँ, इनटू इंसर्ट इनटू दिस टेबल। और उसके बाद फिर सर कॉलम की नेम लिखेंगे अपन। ओके, कॉलम का नेम ऑप्शनल होता है या मैंडेटरी होता है? सर ऑप्शनल है। ऑप्शनल है तो चलो नहीं लिखते, आगे बताओ। वैल्यूज, वैल्यूज लिख दूं? हाँ ठीक है, वैल्यूज लिख देता हूँ। और उसके बाद फिर ब्रैकेट में अपन वैल्यूज लिख सकते हैं, जैसे Okay. लास्ट नेम 1 to 4, लास्ट नेम में कुछ भी डाल देते हैं, ये डाला लास्ट नेम, फर्स्ट नेम में भी कुछ भी डाल देते हैं। ठीक है, सिटी में कुछ और सिटी डाल देते हैं। ठीक है, एंड देन और क्या है, एड्रेस भी था बीच में, एड्रेस डाल देते हैं। एड्रेस में मैंने सिर्फ एड्रेस लिख दिया है फॉर माय रेफरेंस, आप कुछ और भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने एड्रेस लिखा तो आप भी सब वही लिखेंगे। एंड देन ईमेल में abc@gmail.com, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ठीक है, पैरेंथेसिस में ये रन किया मैंने, अब देखता हूँ आया क्या, और आ गया। ठीक है, चलो इसको रिपीट कर लेते हैं एक बार और, ताकि 2-3 रिकॉर्ड आ जाएंगे और आगे काम करने में हमको आसानी हो जाएगी।
सर अगर कॉलम नहीं देंगे तो ये है कि फिर सारे कॉलम्स की वैल्यू चाहिए वैल्यूज में, अदरवाइज फिर एरर देगा। नहीं नहीं, ऐसा एरर नहीं देगा। जैसे सपोज मैंने कॉलम नहीं दिया और आखिरी वाला हटा भी दिया, ठीक है, देखो क्या होता है। ये किया और अब रन किया, अभी देखो क्या हुआ। एरर शायद- आया है सर, नीचे बता रहा हूँ। नहीं, अच्छा हाँ, एरर आया है, कॉलम काउंट डजंट मैच टू द काउंट ऑफ रो। हाँ सर यही होता है। उसको सारे कॉलम्स चाहिए अगर वैल्यूज दिया है, अदरवाइज उसको कॉलम स्पेसिफाई करने पड़ेंगे। नहीं यार, पहले हमने रन किया था, ऐसा नहीं हुआ था उसमें, मैंने रन करके दिखाया था, नल उसी से तो आया था ये। हाँ सॉरी, यहाँ पे कॉमा लगा के देखे क्या, पहले नहीं हुआ था ऐसा, नल इसी से हमारे पास आया था कि हमने कुछ डाला नहीं था। एनीवेज चेक करना पड़ेगा मेरे को, बट ऐसा होता नहीं है, अगर आपने कुछ नहीं डाला तो वो ऑटोमेटिकली ले लेता है उसको। हाँ, MySQL का प्रॉब्लम है, चेक मैनुअल दैट कॉरेस्पॉन्ड। ओके, नॉर्मली सर सभी में आता है, एसक्यूएल सर्वर में भी अगर करेंगे ना तो अदर यू गिव ऑल द कॉलम वैल्यूज और यू स्पेसिफाई द कॉलम्स। ओके, तो इस तरह से हमने वैल्यूज एंटर कर दी है एंड दीज आर द वैल्यूज। अगर यहाँ पे आपको ब्लैंक लाना है तो ऐसा ब्लैंक आप मेंशन कर सकते हो, बट यू हैव टू मेंशन द नेम ऑफ कॉलम, और इफ यू आर नॉट मेंशनिंग द नेम ऑफ कॉलम सो एटलीस्ट सारे नाम आपको डालने पड़ेंगे, तो वो सिक्वेंशियली उसको वैसे के वैसे डाल देगा। ठीक है, तो ये इंसर्ट कर दिया हमने। अब इसके बाद आगे इंसर्ट इनटू फंक्शन देखने के बाद ऑर्डर बाय हम लोगों ने देख लिया है, असेंडिंग डिसेंडिंग। नाउ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है विच इज कॉल्ड एज नल वैल्यूज। नाउ नल वैल्यू क्या होता है? नल वैल्यू बहुत ही एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आप लोगों के लिए, एंड स्पेशली इन द डेटा एनालिटिक्स फील्ड नल वैल्यू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू ट्रैक इट आउट। क्यों होता है ये? क्योंकि क्या होता है, कई बार जब आप डेटा के साथ प्ले करते हैं, नाउ व्हेन यू आर गोइंग टू प्ले विद द डेटा, तो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है और डेटा आपके पास अलग अलग सर्वर से आ सकता है। तो सपोज आप कोई बैंकिंग सिस्टम पे काम कर रहे हैं, ठीक है, और बैंकिंग सिस्टम में काम करते करते सपोज आपके पास एक ट्रांजैक्शन टेबल है, राइट? सो यू आर वर्किंग ऑन अ बैंकिंग सिस्टम, सो यू आर वर्किंग ऑन अ बैंकिंग सिस्टम और बैंकिंग है लेट्स से एबीसी बैंक, और इसके अंदर एक ट्रांजैक्शन टेबल है। ना ये जो ट्रांजैक्शन टेबल है इसमें क्या होगा, तो इसमें होगा आपका अकाउंट नंबर, फिर दूसरा कॉलम कुछ और हो सकता है, तीसरा कॉलम कुछ और हो सकता है, इसी तरह से एक कॉलम है हमारे पास अमाउंट। ठीक है, तो ये जो ट्रांजैक्शन टेबल था, इस ट्रांजैक्शन टेबल के अंदर बहुत सारी अलग अलग फील्ड थी। पहला था हमारा अकाउंट नंबर, दूसरा था मे बी नेम ऑफ द पर्सन, तीसरा था ट्रांजैक्शन अमाउंट, ट्रांजैक्शन अमाउंट, देन और भी कुछ चीजें हो सकती है, डेट वगैरह ये वो करके जो भी हमारे पास है। ठीक है, अभी क्या हुआ ना, अभी सपोज यहाँ पे हमारे पास क्या था कि एक अकाउंट नंबर है 123, ठीक है, और 123 के अंदर अकाउंट के अंदर मान लो 0 रुपीज पड़े हैं, और एक अकाउंट है जिसका नाम है 125, और इसके अंदर मान लो जब हम डेटा डाल रहे हैं तो इसके अंदर कुछ नहीं है। कुछ नहीं है मतलब क्या हुआ कि सपोज ये जो ट्रांजैक्शन टेबल है किसी और टेबल से आता है, मतलब ये ट्रांजैक्शन टेबल के अंदर जो एंट्री होती है, ये ट्रांजैक्शन टेबल के अंदर एंट्री किसी और टेबल से होती है, ट्रांजैक्शन टेबल 1 से या कोई और टेबल से। तो जब ये एंट्री होती है, मान लो ये हमारा एसक्यूएल सर्वर है या कोई एक सर्वर है, और ये हमारा कोई दूसरा ही सर्वर है, अदर सर्वर, या कोई दूसरा बैंक है, सपोज ये हमारे पास एबीसी बैंक है और ये एक्सवाईजी बैंक है। अब ये जो दो बैंक्स हैं आपस में ट्रांजैक्शन सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं, और जब ट्रांजैक्शन सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं तो डेटा ट्रांसफर होता है इसके अंदर एक सर्वर से दूसरे सर्वर में। Now when there is a kind of data transfer between one server to another server, it may happen, ऐसा हो सकता है कि जब आप ट्रांसफर कर रहे हो डेटा का, तो ट्रांसफर करते करते जब रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड डेटा ट्रांसफर हो रहा था,
ये एक रिकॉर्ड है, ये एक रिकॉर्ड है, ये एक रिकॉर्ड है, ये एक रिकॉर्ड है। तो रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड जब डेटा ट्रांसफर हो रहा था, तो ट्रांसफर होते होते समहाउ कोई एक रिकॉर्ड के ट्रांसफॉर्मेशन में, सपोज ये वाला हमारा रिकॉर्ड था, इसके ट्रांसफॉर्मेशन में एरर आ गया। अगर इस रिकॉर्ड के ट्रांसफॉर्मेशन में एरर आ गया तो क्या होगा? एरर आ गया मतलब इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ तक हमारे पास पहुंची नहीं है, पहुंची नहीं है। बट जब ट्रांसफर कर रहे थे तो कुछ तो हमारे पास ट्रांसफर हो गया था डेटा, और कुछ के अंदर प्रॉब्लम आ गई थी। मतलब यहाँ से हमारे पास सिर्फ एक अमाउंट नाम की जो चीज थी, अमाउंट नाम की जो चीज थी वो इस टेबल से आती थी, और बाकी की इंफॉर्मेशन जो थी वो दूसरे टेबल से आती थी, लाइक 1 2 3, ये सब जो चीजें थी, सॉरी लेट मी चेंज द कलर। तो ये सभी जो चीजें थी, ये सभी चीजें जो थी ये दूसरे टेबल से आती थी, और सिर्फ जो अमाउंट वाली इंफॉर्मेशन थी, अमाउंट वाली इंफॉर्मेशन सिर्फ यहाँ से हमारे पास आती थी। तो जब ट्रांसफर हो रहा था डेटा, तो ट्रांसफर होने के बाद ड्यूरिंग दैट ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ से तो डेटा बराबर आ गया, बट यहाँ से डेटा बराबर से नहीं आया, इसके अंदर कुछ एरर आ गया व्हाइल डूइंग द ट्रांसफॉर्मेशन। और एरर आ गया तो यहाँ पे सिस्टम के अंदर कोई वैल्यू पहुंची ही नहीं है, सिस्टम में कोई वैल्यू नहीं पहुंची। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जब हम कोई टेबल को अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, और अगर आपने वैलिडेशंस बराबर से नहीं लगाए हैं, जरूरी नहीं कि आप एसक्यूएल में ही हर बार काम कर रहे हो सकता है आप एक्सेल में डेटा हो आपके पास या कहीं और से हो, तो अगर डेटा बराबर से नहीं पहुंचेगा तो वहां पे हमारे पास क्या हो जाता है, वहां पे वो जगह जो रहती है वो ब्लैंक आती है। लाइक यहाँ पे हमने मान लो ईमेल वाला जो था, जब डेटा बराबर से अपडेट नहीं किया तो उसकी जगह हमारे पास वैल्यू क्या आ गई थी? नल आ गई। नल का मतलब क्या होता है? नल का मतलब होता है नहीं आई है, दैट वैल्यू इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, बट कुछ कुछ सिस्टम के अंदर क्या होता है कि वो नल को बाय डिफॉल्ट या तो ब्लैंक कंसीडर कर लेता है, या फिर उसकी जगह जीरो कंसीडर कर लेता है। अगर ब्लैंक कंसीडर किया और कैरेक्टर वैल्यू है, तो कैरेक्टर वैल्यू में ब्लैंक इंसर्ट किया, इसका मतलब क्या हो गया कि वो वैल्यू हमारे पास, वो डेटा ही अवेलेबल नहीं है। अगर ब्लैंक है इसका मतलब वो डेटा ही अवेलेबल नहीं है, बट एक्चुअली वो रीजन नहीं है। रीजन ये है कि डेटा तो अवेलेबल था हमारे पास, बट जब हमने ट्रांसफर करने की कोशिश करी तो ट्रांसफर करते टाइम पे उसमें एरर आ गया है। सो दैट नीड टू बी फिक्स्ड। हमारे पास इंफॉर्मेशन तो है, बट वो इंफॉर्मेशन को फिक्स करना है, राइट? यहाँ पे नल का मतलब क्या होता है कि वो इन्फॉर्मेशन ही हमारे पास नहीं है, विच इज अ टोटली रॉन्ग थिंग। हमारे पास इन्फॉर्मेशन है बट वो ट्रांसफॉर्मेशन में प्रॉब्लम आया है। या फिर अगर यहाँ पे जीरो आया है, तो जीरो का मतलब क्या हो गया कि जीरो का मतलब कि इस अकाउंट के बैलेंस में जो वैल्यू था, अमाउंट जो था वो जीरो था, मतलब ये अकाउंट है, इसमें कोई वैल्यू नहीं बचा है, इसका अमाउंट जीरो बचा है। तो सपोज आपका कोई बैंक अकाउंट है और आपने उसके अंदर 40-50 हजार रुपए कुछ डाल के रखा है। अगर आपने उस अकाउंट में 50,000 रुपए डाल के रखा है और ऑल ऑफ अ सडन अगर किसी दिन आप जागोगे और जागने के बाद आपने इंटरनेट बैंकिंग पे देखा और आपके इंटरनेट बैंकिंग पे जीरो दिखाने लग गया 50,000 की जगह, तो क्या होगा? इमीडिएट रिएक्शन, पैनिक होगा। आपको डर लगेगा, आपने तो इतना पैसा डाला था, कहाँ गया वो पैसा, राइट? वो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि आपके अकाउंट में 50,000 पड़े थे, बट ऑल ऑफ अ सडन किसी एक दिन को ये जीरो दिखाने लग गया, तो बहुत बड़ा पैनिक हो जाएगा। बट एक्चुअली वो जीरो नहीं है, दैट इज अ लैक ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा। अमाउंट तो था, बट समहाउ कुछ बैंक के सिस्टम की प्रॉब्लम के कारण उसके अंदर क्या हो गया, वो बराबर से सिंक नहीं हो पाया, सिंक्रोनाइज नहीं हो पाया, इसलिए वो जीरो दिखा रहा है। दैट इज द रीजन, करेक्ट? तो ये जो चीज है ये नल वैल्यू कहलाती है। ये जो वैल्यूज रहती है नल वैल्यू कहलाती है, और उनको अच्छे से आपको एड्रेस करना पड़ता है, देखना पड़ता है। दैट हैज टू बी टेकन अप वेरी सीरियसली एंड केयरफुली। क्लियर हो गया? कोई डाउट है इसमें? नल वैल्यू में, नल वैल्यू क्या होती है? एनी कंफ्यूजन इन नल वैल्यू? दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन डेटा एनालिटिक्स। ठीक है, डेटा एनालिटिक्स में हम बहुत कुछ काम करेंगे नल वैल्यूज के साथ। चलो ओके देन, तो आगे बढ़ते हैं। तो नल वैल्यूज अगर आपको चेक करनी है कि आपके डेटाबेस टेबल में है या नहीं है, आपके डेटाबेस में कितनी नल वैल्यूज है, इफ यू वांट टू चेक इट, तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है व्हिच इज कॉल्ड एज इजनल। तो इजनल एक फंक्शन होता है जो कि आपको बताता है कि इज देयर एनी नल वैल्यू इन इट और नॉट। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे ये? फाइंडिंग नल वैल्यूज। तो नल वैल्यूज अगर आपको पता करनी है तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डीबी पर्सन, मतलब ये तो हमने सिलेक्ट क्वेरी लगा दी, और इस सिलेक्ट क्वेरी को लगाने के बाद हमको वो चेक करना है कि वो सारे ईमेल आईडी निकाल के दो, वो सभी ईमेल आईडी निकाल के दो जिनके वैल्यू नल है। ठीक है, इफ यू वांट टू सिलेक्ट ओनली दोज ईमेल आईडी हुज वैल्यू इज नल, तो क्या करना है? वेयर ईमेल एंड देन इज नल। ऐसे रन करोगे तो आपको बता देगा कि ये दो ईमेल है जिनमें नल वैल्यू है मेरे पास। ठीक है,
तो नल वैल्यू पता करना तो इज नल का यूज कर सकते हो। इसी तरह से अगर आपको वो वैल्यूज पता करनी जिनकी वैल्यू नल नहीं है तो इज नॉट नल लिख दो। इज नल लिखा इसका मतलब नल वैल्यू दे दो, नॉट नल लिखा मतलब जिनकी वैल्यू नल नहीं है वो दे दो। बहुत सिंपल सा, मतलब एसक्यूएल अगर क्वेरी लैंग्वेज बोल रहे हैं तो दैट इज अगेन अ वेरी वेरी सिंपल क्वेरी लैंग्वेज, सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर इसका सिंटेक्स होता है। तो अगर इज नल लिख दिया इसका मतलब सारी नल वैल्यू दे दो, नॉट नल लिख दिया इसका मतलब जो नल नहीं है वो दे दो। ठीक है, तो इस तरह से आप नल टेबल को चेक कर सकते हैं, नल वैल्यूज को चेक कर सकते हैं टेबल में। ऑलराइट, आगे बढ़ूं मैं। देन अगर आपको जो भी आपका डेटाबेस टेबल है, जैसे हमारे पास डेटाबेस टेबल है, डेटाबेस टेबल है, इसको रन किया आपने, इतने सारे रिकॉर्ड है इसमें। सपोज अभी तो हमारे पास 4 रिकॉर्ड्स ही है इसके अंदर, बट कई बार होते हैं बहुत सारे रिकॉर्ड होते हैं, 4000 रिकॉर्ड हुए। अगर 4000 रिकॉर्ड हुए तो वो सारे यहाँ पे दिखेंगे नहीं। ठीक है, तो अगर आपको कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स ही देखने हैं इसमें से, तो वो भी आप देख सकते हैं बाय यूजिंग लिमिट फंक्शन। लिमिट फंक्शन क्या करता है कि भाई मेरे को इतने रिकॉर्ड ही दिखाओ, जैसे 3 रिकॉर्ड ही देखने आउट ऑफ 4, तो आपने लिमिट डाल दी 3। सो दैट मीन्स एट अ टाइम आपको 3 रिकॉर्ड्स ही देखने हैं, यू डोंट वांट टू सी मोर देन 3 रिकॉर्ड्स। तो सिलेक्ट करते टाइम पे आप लिमिट फंक्शन का यूज कर सकते हैं टू सी सम नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। ठीक है, यहां से भी ये कंट्रोल हो सकता है कि अगर इफ यू वांट टू लिमिट, तो लिमिट टू 10 रोज, लिमिट टू 50 रोज, 100 रोज एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट इफ यू डोंट वांट टू कंट्रोल इट फ्रॉम हियर, तो आपके पास ये वाला ऑप्शन भी है। ठीक है, नाउ सर इसे रेंज सिलेक्ट कर सकते क्या? हाँ, रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, ठीक है, नाउ लिमिट के बाद आते हैं कुछ एग्रीगेशन ऑपरेशन, एग्रीगेट ऑपरेशंस। कुछ एग्रीगेट करना है। एग्रीगेशन मतलब क्या हो जाएगा कि आपको देखना है कि भाई कुछ कुछ जगह पे हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है, इस तरह की चीजें अगर आपको देखनी है तो वो एग्रीगेट फंक्शन होता है। तो एग्रीगेट कैसे करेंगे? एग्रीगेट करने के लिए आपके पास बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस अवेलेबल है, लाइक मैक्स है। मैक्स मतलब, एग्रीगेट का मतलब क्या होता है सबको पता है ना? यस यस सर, एग्रीगेट जो मतलब सबसे मैक्सिमम आईडी होगी, पर्सन आईडी, वो वाला फेच हो जाएगा। नहीं, मैं एग्रीगेट का पूछ रहा हूँ। एग्रीगेट, हाँ, एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? पूरे ग्रुप पे जो होता है सर, इट इन्वॉल्व्स एनी रिक्वायर्ड ग्रुप। उस ग्रुप के ऊपर सम करेगा, एवरेज करेगा, मिनिमम मैक्सिमम निकालेगा। करेक्ट, सम, मैक्स, मिन, एवरेज, काउंट, ये सब जो रहता है ये एग्रीगेशन होता है। एग्रीगेशन ये सभी ऑपरेशंस को बोलते हैं। तो अगर आपके पास कोई डेटा है और उस डेटा के अंदर सपोज फाइंड आउट द सम ऑफ ऑल द अमाउंट, तो अगर आपके पास अमाउंट नाम का फील्ड है और उस अमाउंट नाम के फील्ड का समेशन करना है, तो समेशन सम फंक्शन से हो जाता है, बट दैट इज गोइंग टू डू ऑन अ टोटल फील्ड लेवल। जैसे हमारे पास ये है पर्सन आईडी, अभी आप इसकी अकेले की बात करोगे तो ठीक है, वो तो अकेला हो गया, दैट इज नॉट एन एग्रीगेट। बट अगर आपको इस सबका सम करना है तो सम जो रहेगा दैट इज गोइंग टू बी द एग्रीगेट। तो एग्रीगेट मतलब सम ऑफ ऑल द रोज, राइट? क्लियर है? तो ये जो आएगा आपके पास 470 और 370, 370 इज गोइंग टू द एग्रीगेट ऑफ दिस ऑल थिंग्स। तो सम एग्रीगेट हुआ है। इसी तरह से मैक्स एग्रीगेशन क्या हो गया? तो मैक्स एग्रीगेशन मतलब इन सब में से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है वो निकाल के ले आओ, तो ये मैक्स एग्रीगेशन हो गया। मिनिमम क्या हो जाएगा? तो मिनिमम एग्रीगेशन जो लोवेस्ट वैल्यू है वो निकाल के ले आओ। एवरेज मतलब क्या हो गया कि इन सबका एवरेज निकालो। देन काउंट मतलब क्या हो गया? इन सबको काउंट कर दो कितनी रोज है, तो हमारे पास 3 रो है। ये एग्रीगेशन होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है डेटा एनालिटिक्स में। अभी हम लोग माइस्क्यूएल खत्म होने के बाद एक उबर केस स्टडी पढ़ेंगे, जिसमें उबर कार का डेटा लेंगे हम लोग और उससे कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करने की कोशिश करेंगे बिजनेस पे। ठीक है, तो उसमें ये एग्रीगेट फंक्शन हमारे बहुत काम आने वाला है। तो आई विल शो दैट,
बट अभी आप लोगों को ये फंक्शन दिखा रहा हूँ। तो अब हमारे पास क्या है यहाँ पे, अगर हमको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है पर्सन आईडी की, तो कैसे निकालेंगे, सिलेक्ट मैक्स पर्सन आईडी फ्रॉम दिस टेबल। ये जैसे ही करोगे तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाए। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए तो मिन फंक्शन यूज करना पड़ेगा, तो मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा। अगर समेशन करना है तो सम वैल्यू ले लो। सिमिलरली काउंट होता है, काउंट से क्या होगा, सारी रोज का काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप एग्रीगेट फंक्शन चला सकते हैं। राइट, एवरेज लेना है तो एवीजी फंक्शन आ जाएगा हमारे पास, ये एवरेज आ गया सभी का। क्लियर, इसमें कोई डाउट है अभी? बहुत सिंपल है। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम पूछो फटाफट, नहीं तो आगे बढ़ते हम लोग। कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़े। चलो, अब उसके बाद अगला आता है वाइल्ड कार्ड। वाइल्ड कार्ड मतलब क्या होता है कि किसी भी टेबल में से कुछ आपको सर्च करके लाना है। जैसे हमारे पास टेबल है, अब ये टेबल है, इसमें से आपको कुछ सर्च करके लाना है। तो सर्च करके लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वाइल्ड कार्ड का यूज करना पड़ेगा। या वाइल्ड कार्ड यूज करना पड़ेगा नहीं, अगर पड़े आपको जरूरत हो तो यू कैन यूज वाइल्ड कार्ड। वाइल्ड कार्ड मतलब सपोज मुझे इस पूरे टेबल में से वो सभी डेटा निकाल के लाना है, दोज हु आर स्टार्टिंग विद टी, तो वो सभी लास्ट नेम, ऑल दोज लास्ट नेम्स हु आर स्टार्टिंग विद टी इफ यू वांट टू फिल्टर आउट। तो कैसे करेंगे, उसके लिए आपके पास है लाइक फंक्शन। तो लाइक फंक्शन ये क्या करता है, तो लाइक क्या करता है, लाइक इज गोइंग टू पिक अप ऑल दोज रिकॉर्ड्स हु आर गोइंग टू स्टार्ट विद टी, वो सारे रिकॉर्ड्स जिनका टी से स्टार्ट होता है। एंड देन दिस परसेंट का मतलब होता है कि इसके बाद कितने भी, मतलब आइदर टी देन आफ्टर हाउ एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, लाइक ऐसे सारे जिसके अंदर शुरुआत में सबसे पहले टी आता है, उसके बाद कुछ भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आता है, एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर आफ्टर टी, सो वो परसेंट से शो करते हैं। परसेंट का मतलब क्या हो गया, एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आफ्टर टी। ठीक है, सो ऐसे हम लोग यूज कर सकते हैं। सो क्या करना होगा, फॉर दैट यू हैव टू राइट द जनरल सेलेक्ट query, select star from the table name, and then where last name is like, last name like, और उसके बाद t से स्टार्ट होने वाला आपको चाहिए तो t, एंड देन ये परसेंटेज लगा दो। इसका मतलब क्या हो गया कि t से शुरू होगा और आगे कुछ भी लिखा रहेगा, कितने भी कैरेक्टर्स होंगे दे ऑल आर एक्सेप्टेड, लाइक दिस। ठीक है, चलो अभी वन बाय वन में पूछना शुरू करता हूँ। Who is going to say okay, भावना आप बताइए, how we can have all the addresses starting with 1. All the addresses now we can give it like %1. Okay, correct. So क्वेश्चन ये था कि कैसे हम लोगों के पास वो सारे एड्रेसेस आ जाएंगे जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वेयर एंड देन लास्ट में वेयर हमको एड्रेस चाहिए था, तो एड्रेस पे क्वेरी लगाएंगे, वेयर एड्रेसेस इज इक्वल टू, एंड देन नॉट इक्वल टू, एड्रेस लाइक, एंड देन दे स्टार्ट विथ 1। स्टार्ट मतलब क्या हो जाएगा, ये 1 लिखा एंड देन उसके बाद ये लगा देंगे तो वो स्टार्ट विथ हो जाएगा। फर्स्ट डीबी, ओके, अगर इसी में हमको एंड विथ वाई करना होता या एंड विथ समथिंग एल्स चाहिए था, तो एंड अगर चाहिए तो एंड में फिर हमको यहाँ लगाना होता है, ये लगा दिया। इसका मतलब क्या हो गया कि बिफोर कितने भी कैरेक्टर होंगे
बिफोर एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर बट एंडिंग विथ 1, या एंडिंग विथ सपोज y चाहिए आपको सिटी के लिए तो भी चल जाएगा. सो दीज आर एंडिंग विथ y. करेक्ट. सो आगे आपने परसेंटेज लगाया, मतलब आगे कितने भी कैरेक्टर हो बट सबसे आखिरी में ये होना चाहिए. अगर आपने पीछे लगाया इसका मतलब पीछे इधर कितने भी कैरेक्टर, मतलब पीछे कितने भी कैरेक्टर होंगे बट स्टार्ट इज गोइंग टू बी टी. अगर आपने दोनों साइड लगा लिया इसका मतलब क्या हो गया कि आगे भी एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर, पीछे भी एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर, बट बीच में कहीं ना कहीं टी आना चाहिए. मतलब टी शुड नॉट बी एट द आइदर एट द बिगिनिंग और एट द एंड. ऐसा कुछ अगर आपको क्वेरी लिखना है तो आगे पीछे परसेंटाइल लगा दो. क्लियर है? दोज हु आर नॉट सो कंफर्टेबल विद एसक्यूएल, अभी बोलो, आपका टाइम है बोलने का, पूछने का. ठीक है? Sir? हाँ बोलिए. Sir, can I give instead of just one T, can I give a word itself like test and then percentage in between? Yes, you can give me. Let's try it. Test. ठीक है? Test and then percentage, maybe in between or after, and in the last name. So let's try it. ये आ गया. ठीक है? Okay, sir. Okay. टेस्ट की जगह मैं लास्ट कर देता हूँ. अच्छा, अगर मैंने ये रन किया तो क्या होगा बताओ? What will happen if I run this query? It has to have a last as a first thing in last name. करेक्ट. तो कुछ आएगा हमारे पास सिलेक्शन में? No, no. Nothing will come out, क्योंकि हमारे पास ऐसा कुछ है ही नहीं. लास्ट आया जरूर है बट वो बीच में कहीं आया है. अगर बीच में आया उसको निकाल के लाना है तो फिर ये सा लगाना पड़ेगा. आगे भी कुछ भी हो सकता है, पीछे भी कुछ भी हो सकता है, बीच में लास्ट कहीं ना कहीं होना चाहिए. Understood, sir. ओके. नाउ अभी कई बार क्या होता है ना कि लास्ट बट वन, जैसे इफ यू वांट टू फाइंड आउट द फर्स्ट नेम हु आर whose last but one character is E, मतलब वो सारे नाम निकाल के लाओ जिनका पीछे से दूसरा वाला सेकेंड एलिमेंट, नॉट द लास्ट वन, सबसे आखिरी वर्ड नहीं, सबसे आखिरी कैरेक्टर नहीं, आखिरी से पहला वाला कैरेक्टर ई हो. आखिरी से पहले वाला कैरेक्टर ई हो, वो कैसे लिखोगे? वो फर्स्ट नेम जिसका आखिरी से पहले वाला कैरेक्टर ई हो वो कैसे लिखेंगे? तो उसके लिए हमको पहले तो नॉर्मल सिलेक्ट लगाना है, फिर उसके बाद हम लोगों को सिलेक्शन करना है फर्स्ट नेम पे. ओके, तो लिखो फर्स्ट नेम यहाँ पे, ये रहा फर्स्ट नेम. ठीक है. नाउ इन द फर्स्ट नेम वी आर लुकिंग फॉर लास्ट बट वन, मतलब ये ई जो है वो यहाँ पे होना चाहिए. ई के पहले कितने भी कैरेक्टर हो सकते हैं, पहले कितने भी कैरेक्टर हो सकते हैं, तो एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस. तो पहले कितने भी कैरेक्टर हो गए वो तो आपने इससे कर दिया. ई आना चाहिए तो ठीक है, ई आएगा. बट अगर आपने ऐसा लिखा तो दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू से दैट एंड विथ ई, बट हमको ई से एंड नहीं करना है. ई से एंड नहीं करना है बिकॉज इफ यू आर राइटिंग इट लाइक दिस दैट मीन्स कि आखिरी कैरेक्टर ही होगा. हमको ई से एंड नहीं करना है, हमको ई के पहले मतलब लास्ट वाले से एक पहला वाला कैरेक्टर चाहिए. तो वो कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए हमारे पास ये होता है. ये अगर आप लिखते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि ई के बाद सिर्फ एक ही कैरेक्टर हमको एक्स्ट्रा चाहिए, उसके बाद और नहीं चाहिए. अगर आपने यहाँ पे ये लगाते हैं इसका मतलब कि ई के बाद 2 कैरेक्टर भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर इट इज पॉसिबल. बट अगर आपने ये लगाया तो इसका मतलब वो स्ट्रिक्टली एक ही कैरेक्टर होगा ई के बाद, उसके बाद और नहीं होगा. राइट? ये आ गया. तो ई के बाद सिर्फ एक ही कैरेक्टर इसमें भी. क्लियर हुआ ये? सिमिलरली ठीक है. एनी डाउट इन डाउट एनी डाउट? ऐसे इसको बिगिनिंग में भी Is there any other function also which can be used instead of underscore? इंस्टेड ऑफ अंडरस्कोर नहीं, मुझे ध्यान नहीं अभी फिलहाल. नॉर्मली मैं यही यूज करता हूँ, बट यू कैन एक्सप्लोर. MySQL है. और ये भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि कहीं से भी आपको अगर इंटरनेट से भी हेल्प ले रहे हैं तो यू हैव टू लुक एट MySQL SQL क्वेरीज ओनली, क्योंकि SQL क्वेरी हर सिस्टम टू सिस्टम चेंज होती है. वो भी आपको ध्यान रखना है, वो हर सिस्टम पे अलग अलग SQL क्वेरी चलती है. अगर आपने MySQL लिया है तो MySQL पे क्वेरीज अलग रहेगी थोड़ी सी. इसी तरह से MS Excel पे थोड़ा अलग होता है, Oracle पे थोड़ा सा अलग तरीके से भी चलती है कई सारी क्वेरी.
so that is not going to be there that all the SQL queries are going to work on MySQL, है ना? बट मोटा मोटा वही चलती है, ज्यादा फर्क नहीं आता है, ठीक है? इसी तरह से if you want to find out anything which is starting with T ending with E, T से स्टार्ट हो रहा है, E से एंड हो रहा है, बीच में कुछ भी आ रहा है, तो T से स्टार्ट हो रहा है, E से एंड हो रहा है, बीच में कुछ भी आ रहा है, तो वो कैसे करेंगे? तो ये परसेंटेज, मतलब कुछ भी आ रहा है बोले तो कितना नंबर भी कैरेक्टर हो सकते हैं। इट में भी THE द, अगर हमने ऐसा लिखा तो ये जो रहेगा ये THE द को भी कवर करेगा, बिकॉज यहाँ पे T से स्टार्ट हो रहा है, E से एंड हो रहा है, तो ये द को कवर करेगा, ये टेबल को भी कवर करेगा, टेबल इसके अंदर T से स्टार्ट हो रहा है, E से एंड हो रहा है और बीच में 3 कैरेक्टर आ रहे हैं, चलेगा इसको, या फिर इसको ये भी कवर करेगा, टेस्ट लास्ट नेम स्टार्टिंग विथ T एंडिंग विथ E, है ना? अगर ऐसा कर रहा है तो ये चलता है। तो अगर आपने ये लगा दिया, इसका मतलब एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन बिटवीन स्टार्टिंग विथ T एंडिंग विथ E, ठीक है? एनी डाउट? कोई प्रॉब्लम? हाँ बोलो। सर इसमें जैसे नल वैल्यू जो है, जैसे कि किसी इसमें कॉलम में नल वैल्यू आ रही है, कोई मेरा इंटीजर कॉलम है या डेसिमल कॉलम है, बट मेरे को उसको 0 बनाना है, तो कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? बिकॉज अपडेट नहीं, तो सिलेक्ट कर रहा हूँ उसी टाइम पे मेरे को नल है तो 0 ले लेना है, अगर ऐसा है तो। सिलेक्ट में आप अपडेट नहीं कर सकते ना। अच्छा, नल है तो 0 ले लेना है, तो वो तो आपको शो होगा, अपडेट नहीं होगा टेबल में। अपडेट करना भी नहीं है, वो जो है वही, मतलब मेरे को कि जैसे अगर नल वैल्यू है तो उसको, जैसे कि हम लोग यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर पे इज नल और उसके बाद फिर कॉलम वैल्यू और उसके बाद कॉमा 0 कर देते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो भी नल होती है वो 0 होके दिखने लगती है। ऐसे अगर मेरे को शो करना है MySQL में, इसमें भी इज नल वैसा करके फंक्शन होता है या दूसरा कोई फंक्शन? इज नल फंक्शन है ना, मैं बताया ना, ये इज नल फंक्शन, इज नॉट नल, इज नल, ये हमने देखा ना। ओके, चलो, तो ये हुआ अपना नॉर्मल वाइल्ड कार्ड। इसमें भी बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, आप लोग थोड़ा सा इसको ढूंढ सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। अभी मैं आपको काफी सारे कवर करके दिखा दिया। एक्सक्यूज मी, जैसा कि ओरेकल में NVL करके कमांड होता है, NVL का NVL वही होता है जिसमें ये NVL यूज करते हैं और उसको अगर कॉलम वैल्यू कॉमा 0 कर दिया, जैसे कोई न्यूमेरिक है तो ऐसे इसमें भी कोई डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो होगा। NVL इसमें इफ नल होता है, इफ नल, आई हैव नल कॉलम नेम कॉमा 0। ओके, इफ नल होता है क्या? हाँ ठीक है, यस, इफ नल होता है। हाँ, ऐसे एसक्यूएल सर्वर में इज नल होता है, इसमें इफ नल होता है। ठीक है, थैंक यू। चलो, बहुत बढ़िया। और भी कोई क्वेश्चन आप लोगों के रहते हैं तो यू कैन यूज दैट व्हाट्सएप ग्रुप ना, उसके ऊपर आप डालो, तो उससे क्या होगा ना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी आप लोगों की बढ़ेगी एंड देन म्यूचुअल नॉलेज भी आप आपस में गेन करोगे। ठीक है, चलो आगे बढ़े फिर। ऑलराइट, तो ये तो हुआ नॉर्मल बेसिक चीजें। नाउ यू कैन एक्सप्लोर इट ओवर इंटरनेट, बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएगी, है ना। नाउ नेक्स्ट वन इज बिटवीन एंड नॉट लाइक। सो लाइक के लिए क्या होगा कि जो भी लाइक किया तो वो वाला फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया सेटिस्फाई होगा, रिकॉर्ड दे देगा। बट अगर उसको सेटिस्फाई करने वाले नहीं चाहिए तो नॉट लाइक यूज कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि एनीथिंग विच इज एनी फर्स्ट नेम विच इज एंडिंग विथ ई, या फिर ये वाले हम लोगों ने देखे थे, एनी लास्ट नेम विच इज स्टार्टिंग विथ टी। तो लास्ट नेम स्टार्टिंग विथ टी ये वाला रन करोगे तो वो सारे लास्ट नेम जो टी से स्टार्ट होते हैं वो दिखा देगा। लास्ट नेम, हाँ, वो सारे लास्ट नेम जो टी से स्टार्ट होते हैं वो शो करेगा। बट अगर आपको वैसे सारे चाहिए जिसमें लास्ट नेम टी से स्टार्ट नहीं होता, अपोजिट ऑफ लाइक, तो आपको वहां पे नॉट लाइक आ जाता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। तो नॉट लाइक लिख दो, तो उससे क्या हो जाएगा कि वो सारे जिनका लास्ट नेम टी से स्टार्ट नहीं होता वो दिखाएगा। करेक्ट, अपोजिट ऑफ लाइक इज नॉट लाइक। नाउ उसके बाद हमारे पास अगला जो है वो बिटवीन फंक्शन है। बिटवीन का मतलब क्या हो गया कि जैसे हमारे पास ये क्वेरी हमने चलाया सिलेक्ट वाला, एंड देन ये क्वेरी चलाने के बाद आपको सारे रिकॉर्ड्स मिल गए। ना आफ्टर दिस रिकॉर्ड, अगर आपके पास बहुत सारे रिकॉर्ड है और आपको रेंज में चाहिए, मतलब लेट्स से थोड़ा इसको और इंसर्ट करता हूं मैं, फर्स्ट GB डॉट पर्सन्स वैल्यूज और
उसके बाद आप वैल्यूज डाल देते हैं। तो वैल्यूज में मेरे को यहाँ पे 1 to 1 चाहिए था, एंड देन अभी यहाँ पे कुछ भी डालो। Four fields, and then fifth one is also okay. ये मैंने डाला, तो एक वैल्यू और इंसर्ट हो गई इसमें। ठीक है, अभी मेरे को 2-3 वैल्यू और इंसर्ट करनी है इसी तरह की। ओके, तो एक वैल्यू और इंसर्ट कर देता हूँ 120 नाम की, वो भी इंसर्ट हो गई। ठीक है, तो ये सभी वैल्यूज आपने इंसर्ट कर दी। अब अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो आपको ये वैल्यूज आ गई। हाँ, इसके अंदर आप देखोगे तो आपके पास बहुत सारे पर्सन आईडी आ गए, दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम 120 एंड गोइंग टिल 124। पर आपको ये सभी नहीं दिखाने हैं, आपको सिर्फ वही पर्सन आईडीज देखने हैं हु आर बिटवीन 121 एंड 123। तो ऐसे पर्सन आईडी जो 121 और 123 के बीच में हो। ऑल पर्सन आईडी नहीं चाहिए आपको, जो 120 है ये नहीं चाहिए आपको, 124 है ये नहीं चाहिए आपको चाहिए ऑल दोस पर्सन आईडी हु आर रेंजिंग बिटवीन 121 एंड 123। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, जस्ट यू हैव टू डू सिलेक्ट स्टार फ्रॉम द डेटाबेस नेम एंड देन पर्सन आईडी बिटवीन 121 एंड 123। तो ये बिटवीन चलाने से क्या होता है, इट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम दिस एंड गोइंग टू एंड बाय दिस। क्लियर है, बहुत सिंपल। ठीक है, तो ऐसे ये वर्क करता है ना। ये हम लोगों ने कुछ बेसिक एसक्यूएल क्वेरीज हम लोगों ने अभी तक सर्च करी, देखी, समझी ना। थोड़ा सा इसमें और भी क्वेरीज है, अभी हमारे पास ज्वाइंस बचे हैं एंड देयर आर फ्यू मोर ऑपरेशंस आर देयर, बट बिफोर दैट थोड़ी और चीजें हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा अलग देखते हैं। यहाँ तक तो हमने देख लिया है सभी चीजें, है ना। अब इसके बाद एक काम करते हैं, जस्ट एक मिनट, मैंने शेयर अनशेयर किया है, तो अगर आपको मेरी स्क्रीन में दिख रही है तो कोई बात नहीं, मैंने ही बंद किया है इसको। एक एक्सेल शीट मुझे पुल आउट करनी है इसलिए। Just give me a second. Correct. तो अब हमारे पास एक डेटा सेट है विच इज अ टैक्सी डेटा सेट, और इस टैक्सी डेटा सेट के ऊपर हम लोग कुछ ऑपरेशंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये टैक्सी डेटा सेट है, हमारे पास एक डेटा सेट है ना। ये जो डेटा सेट है इसके ऊपर आपको एसक्यूएल क्वेरीज रन करनी है, एसक्यूएल की क्वेरीज चलानी है, ताकि आप इसके ऊपर कुछ बिजनेस इनसाइट्स ड्रॉ कर पाए या डिफाइन कर पाए। ठीक है, तो ये कैसे कर सकते हैं, अभी इसके अंदर हमारे पास स्टार्ट डेट दिया है, मतलब ये डेटा जो है वो उबर कंपनी का है एंड दैट उबर ड्राइव और उबर कार्स आर रनिंग बिटवीन 2 डिफरेंट स्टेशंस ऑफ यूएस। तो यूएस के अलग अलग स्टेशन हैं, या मे बी जहाँ पे भी ये ऑपरेट होती है वहाँ के 2 अलग अलग स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट्स हैं, और उनके बीच में ये रन होती है। नाउ ये हमारे पास डेटा है, लगभग कितने रोज है मेरे पास, इसमें अराउंड 1056 रोज है। तो ये जो 1056 रोज है, इन 1056 जर्नीज के ऊपर क्या हम कुछ इंसाइट्स ड्रॉ कर सकते हैं? आप लोगों से ही क्वेश्चन है। नाउ कैन यू टेल मी, कुछ हम लोग उबर कंपनी की मदद कर सकते हैं यहाँ से कुछ चीजें निकाल के? एनीबॉडी, क्या आप इंसाइट दे सकते हो, कैसे दे सकते हो बताओ? सर फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन
We can give a comparative study that from starting point to stop point, how many tours or how many trips are going on day wise or any weekday wise. This type of analysis we can do. ठीक है, so we will list down a few and then try to execute that. तो पहला बताओ मुझे, कोई भी एक बताओ, then one by one points लिखते जाएंगे. Average distance. Average distance. Sir, on the basis of purpose, we can find out our target customers. I mean, Time, based on time. एक मिनट. One by one. Average distance between. Average distance of what? Onboarding, like write the average distance from each start point. या maximum onboarding कितने हुए from the station. Average distance of a drive. कोई भी ड्राइव रहेगी, अभी वो किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में होती है, और वो उसका एवरेज डिस्टेंस निकाल के दे दो तो उनके लिए अच्छा रहेगा. इससे फायदा क्या होगा मेरे को ये बताओ बिजनेस को, या किस सेंस में उनको फायदा होगा? फेयर अपने हिसाब से वो कर सकते हैं, बेस्ड ऑन दैट, तो वो टैरिफ उसके हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं. फेयर तो डिफाइंड रहता ही है ना पहले से, वो ड्राइवर के पास थोड़ी रहता है. टैरिफ अगर वो कुछ सर्ज आवर्स में अगर डिफाइन करना चाहे तो वो कर सकता है. और कोई इसमें एडवांटेज, मतलब बिजनेस के टर्म्स में बताऊं मेरे को, बिजनेस को क्या फायदा होगा इसमें? फ्यूल कंजम्पशन कितने हैं यार, कुछ उस तरह से डिराइव कर सकते हैं बिजनेस केपीआईज के साथ. वही सोचो उस डायरेक्शन में, मैं भी वही डायरेक्शन का बोल रहा हूँ आपको, आप सही जा रहे हो उसी डायरेक्शन में. थोड़ा सोचो कौन सा केपीआई हो सकता है. अगर सर जैसे स्टार्टिंग पॉइंट पे हम लोग एनालिसिस करते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट से हम लोगों को कितने टूर्स, किस दिन कितनी टूर्स रहती है, उससे ये पता चलता है कि हमको उस दिन जो है उस स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने व्हीकल्स अवेलेबल रह सकती है, उनकी हमको अवेलेबिलिटी वो कर सकते हैं ऑन एन एवरेज. नाइस. तो डे वाइज टूर्स फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट और मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रिप्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ स्टार्टिंग पॉइंट. डे वाइज को थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो मैक्सिमम नंबर कर देते हैं. डे वाइज भी हम लोग आएंगे, बट मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रिप्स और मे बी मोस्ट पॉपुलर, ऐसा लिख दो ना, मोस्ट पॉपुलर स्टार्टिंग पॉइंट, ये निकाल सकते हो. ये निकाला तो आपको क्या पता चल जाएगा, यू विल बी हैविंग एन आइडिया कि कहाँ पे कैप्स डिप्लॉय ज्यादा करनी है. मस्ट हैव मोस्ट ऑफ नंबर, आई मीन मोस्ट कैप्स टू बी देयर, राइट. तो उससे बिजनेस प्लान कर पाएगा कि यहाँ पर हमारे पास ज्यादा कैप्स रखनी है ना. हर एक के पास, मतलब ऐसा होता है ना, हमारे पास भी होता है कि हम लोगों ने देखा होगा कि ओला एंड उबर अलग अलग जगह पे खड़ी रहती है, बट अगर हमने रेलवे स्टेशंस देखा और हमको पता है कि रेलवे स्टेशन से ज्यादा कैब ओरिजिनेट होती है तो वहाँ पे ज्यादा होनी चाहिए. सिटी के दूसरी लोकेशंस पे थोड़ी कम रहेगी, चलेगा, क्योंकि कम उसमें डिमांड रहती है. हाँ, एवरेज डिस्टेंस ऑफ अ ड्राइव, ये इससे क्या पता चलता है? जस्ट एक मिनट. The modification of data, I mean, in terms of distance, we can have pricing, like if whatever is the average number of kilometers or miles that are covered by on an average, we can have a simple tariff. I mean, in terms like could be like be it looking at the data, like roughly it comes around 2 miles. And for that, if that is the average, we can have a fixed pricing for that maybe. वो भी हो सकता है, या फिर एक बहुत बेसिक सी चीज बोला जाए. So it is going to give an idea to drivers. It is going to give an idea to drivers that on an average इतना बिजनेस मुझे मिल सकता है, राइट. अगर हम लोग एवरेज बता रहे हैं कि हमारा एवरेज ड्राइव जो रहता है, एवरेज ड्राइव्स जो रहते हैं वो 50 किलोमीटर हम दिल्ली का बिजनेस आपको दे सकते हैं. तो इट इज गोइंग टू हेल्प देम whom business to negotiate with the cab drivers. तो कैब ड्राइवर के एंगेजमेंट में आसानी हो जाता है कि हमारा जो एवरेज कैब होती है या एवरेज कैब्स रन होती है, उनका एक एवरेज डिस्टेंस इतना होता है, इतना डिस्टेंस होता है. ऑन अ डे आपको अगर 50 ड्राइव मिल रही है तो ऑन अ डे कितना ड्राइव मिल रही है, और एक ड्राइव जो रहती है करीब करीब 2 किलोमीटर या 5 किलोमीटर की मिनिमम होती है या एवरेज होती है. Average drive is almost 5 kilometer and you are going to get such 10 drives in a day. That means आपको total 50 kilometer का business हम लोग देने वाले. So based on that, drivers will be having an idea of business they are going to get from the car company. तो उससे उनसे negotiate करने में काफी आसानी हो जाती है हम लोग को, right? Does it make sense?
Yes, sir. है ना? तो टेंटेटिव और एवरेज बिजनेस ड्राइवर्स, ठीक है, ये हो गया। अभी और क्या बता सकते हो, बताओ, अभी 2 ही पॉइंट Sir, बताया on आपने। the basis of purpose, we can find the primary customers ओके, and then optimize the rides according to that. ऑप्टिमाइज मींस व्हाट? Sir, exactly. So सोचो ना, वही तो सोच रहे हैं हम लोग, कोई टेंशन नहीं yes, है। आई नो कि हम लोग कोई Like, बहुत बड़े बिजनेस यूजर्स from नहीं है। हाँ, from the company's perspective, they can provide their offer to such identifying such customers, like based on the purpose of the visit. why company will like to offer something based on Like purpose? usually they do, right? The discounts, you know. No, so what is the motive of company to provide the offers, or maybe something else? So that so as to promote them to opt for this product. particular cab brand. तो सी, हाँ ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट। तो अभी भावना बता रहे हैं कि वी कैन मेक सम कस्टमाइज्ड ऑफर, समथिंग ऑफ इट, कस्टमाइज्ड ऑफर बेस्ड ऑन यूजर ग्रुप। मतलब Yes, क्या sir. हुआ For ना, example, right now the Ola and Uber were giving a discount on people who discount to people who are going on vaccination. So वेरी नाइस, वंडरफुल that एग्जांपल, वंडरफुल एग्जांपल। तो ये एक हो जाएगा ना कि वैक्सीनेशन एक पर्पस है, और yes, sir. देयर इज अ कॉज आफ्टर, आई मीन देयर इज अ मोटिव बिहाइंड दैट पर्टिकुलर थिंग। तो उसने क्या Yes. करा, पर्पस के बेसिस पे सॉर्ट आउट किया, दोज हु आर गोइंग फॉर वैक्सीनेशन गिव देम 5% ऑफ, 10% ऑफ, 50% ऑफ, जो भी है। इट मे बी अ मार्केटिंग डिसीजन, इट मे बी अ kind of CSR decision or anything else, but based on purpose they can customize the offer based on user group, है ना? एक ही हो गया, ऑफर दे देंगे। इसी तरह से क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जो भी ऑफिस जाते हैं लोग, दे नॉर्मली गो बिटवीन 9 to 6। तो 9 to 6 अगर जा रहे हैं तो हम लोग बिजनेस यूजर्स के लिए ऐसा कुछ ऑफर लगा सकते हैं कि नॉर्मली ये वाला टाइम पीक जरूर होता है, बट उसके बीच में वो होता है शेयर वाला। आपने कंसेप्ट देखा होगा, ओला शेयर या उबर शेयर, किसी ने तो चलाया, ओला ने चलाया शायद। तो शेयर क्या होता है कि दो स्टेशन है, उन दोनों स्टेशन के बीच में जाने वाले जो यूजर्स हैं उनको पता करते हैं, एंड देन वी ऑफर देम कंसेशंस, आई मीन सम ड्राइव एट अ लोअर रेट। मतलब वो शेयर करते हैं ड्राइव को कि भाई हम पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में जा रहे हैं, कि आपको भी उसी पॉइंट पे जाना है, इफ यू वांट टू गो ऑन द सेम पॉइंट देन व्हाई नॉट यू शेयर योर ड्राइव। तो वो भी करते हैं, तो उससे क्या होता है कि कस्टमर बेस मिलता है, एंड इट मेक्स थिंग्स इजियर, राइट? और कोई इसमें पर्पस हो सकता है, पर्पस से कुछ और निकाल सकते हो? सोचो सोचो, थोड़ा सोचना शुरू करो। दैट इज व्हाट इज द डेटा एनालिटिक्स ऑल अबाउट। इसके डैशबोर्ड्स बनते हैं, अभी तो हम लोग बहुत बेसिक एक्सरसाइज कर रहे हैं, बट ये जैसे जैसे स्केल अप होता है बहुत सारी चीजें होती है। हाँ बोलो। Peak times when the service is required based on time of taxi pickup. हाँ बट वो दैट इज टाइम, वी आर टॉकिंग अबाउट पर्पस। Okay. ये एक है ना मीटिंग। मीटिंग मतलब क्या, जब अगर कोई मीटिंग के लिए जा रहा है तो मीटिंग की प्रिपरेशन भी करेगा, एंड इफ ही वांट टू मेक प्रिपरेशन ऑफ द मीटिंग, मे बी लैपटॉप पे कोई प्रेजेंटेशन वगैरह बना रहा है, तो बाय बेस्ड ऑन द लोड, वर्कलोड, कि मीटिंग के लिए बहुत सारे लोग आने वाले हैं, तो व्हाई नॉट ऑफर फ्री वाईफाई, व्हाई नॉट पुट लैपटॉप टेबल इन द कैब। कैब में लैपटॉप टेबल टाइप का वो नहीं होता है, छोटा सा एक बोर्ड होता है जो सीट से ओपन हो जाता है, और देन यू कैन पुट योर लैपटॉप देयर। वाईफाई रख सकते हो, फ्री वाईफाई। maybe some more customizations that you want to do, you can do in the cab based on the users who are going to be in meeting. Similarly, if we are having lot of users going for entertainment, तो entertainment के लिए जा रहे हैं तो उसमें बच्चे भी होते हैं नॉर्मली, क्योंकि फैमिली के साथ जा रहे हैं, तो फिर बच्चों के लिए कुछ टॉयज या कुछ मे बी एंटरटेनमेंट, मतलब कई सारी जो प्रीमियम राइड्स होती हैं उसके अंदर टीवी भी रहता है, म्यूजिक सिस्टम्स रहते हैं, एंड दैट काइंड ऑफ स्टफ इज देयर, राइट? तो ये सब किस लिए होता है? तो ये सब अगेन बेस्ड ऑन कस्टमर्स रिक्वायरमेंट हम लोग देते हैं, एंड ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू चार्ज लिटिल प्राइम अमाउंट फॉर दैट। वो जो राइड रहेगी उसमें ज्यादा अमाउंट हम लोग चार्ज करते हैं, बट स्टिल दैट इज समथिंग बेस्ड ऑन कस्टमर एक्सपीरियंस, और मे बी यूजर एक्सपीरियंस हम लोगों को अच्छा करने के लिए काम आता है। ठीक है, नाउ एनी अदर थिंग? और कुछ नहीं है, बस इतना ही याद आया इसमें से देख के?
बेस्ड ऑन टाइमिंग पीक आवर्स निकाल के सर्च स्टार निकालते हैं। peak hours, that is very good. Find out peak hours. Peak hours निकालोगे तो सर्च प्राइसिंग Yes. याद है, होता भी है अभी तो। अभी देखना ओला और उबर के अंदर क्या होता है कि सुबह सुबह बुक करने जाओगे कैब को 2 पॉइंट से बीच में प्राइस कम रहेगा, दिन में जाओगे 9 o'clock या 10 o'clock के आसपास ज्यादा होएगा, तो सर्च प्राइसिंग कहलाता है। सर्च प्राइसिंग टाइमिंग पे डिपेंड करता है। और कोई So based on the number of rides we are having in a day, we can find the percentage of growth or loss the product is facing. ट्रैकिंग ऑफ ग्रोथ, राइट, कि कैसा ग्रोथ Yes, हो रहा है उस पर्टिकुलर टेरिटरी में, और मे बी ओवरऑल वो Yes, ट्रैक कर positive, सकते हो। negative जो भी जा रहा है, so we can change You can do according to that. that. You can do that. Anything else? बहुत सारी चीजें इसमें Based से on the निकाल सकते हो। date, we can find the day and like किस दिन पे कौन सी टैक्सी ज्यादा रिक्वायर्ड रहती हैं, so we can speculate on that. या उसको थोड़ा सा और इजी करूं, पॉपुलर डे ऑफ वीक, ये भी तो कर सकते हो पहले। नॉर्मल अजम्पशन क्या है? अच्छा तुम ही बताओ कि नॉर्मल अजम्पशन क्या है, कब हमको कैब की ज्यादा जरूरत होती है? Weekends. वीकेंड्स पे, करेक्ट? कोई और ओपिनियन है इसमें? वीकेंड्स पे और उसके बाद हॉलीडेज पे, जैसे दिवाली वेकेशन और दिवाली का है। नया चीज आया, तो ये क्या हो गया, डे ऑफ वीक की जगह डे ऑफ मंथ भी हो गया। मतलब दिवाली वगैरह जो रहेगा, या फिर कई बार ऐसा भी होता है वीक मतलब कुछ लोग रहते हैं जो मंथ के बिगिनिंग में थोड़ा सा ज्यादा स्पेंड करते हैं, मंथ के एंड में थोड़ा हार्ड टाइट हो जाता है, ऐसा भी होता है। तो डेज ऑफ मंथ भी हम लोग पता कर सकते हैं कि कब पॉपुलर है कब नहीं है। क्या वो मंथ के बिगिनिंग में ज्यादा लोड रहता है कैब के ऊपर, मंथ के एंड में ज्यादा होता है, ऐसा हो सकता है कोई पैटर्न, राइट? हमको पता नहीं अभी, बट दैट मे बी अ हिडन पैटर्न, इट मे नॉट बी, बट हो भी सकता है कि हिडन हो। इसी तरह से पॉपुलर डेज जो रहेंगे, अभी एक जनरल अजम्पशन मुझे बताया कि भाई वीकडेज पे वीकेंड पे ज्यादा लोड रहता है, बट आई मे थिंक कॉन्ट्ररी कि वीकडेज पे ज्यादा लोड रहेगा कैब्स पे। क्यों? क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ especially in metros there are a lot of females who would like to travel to their office and they don't have vehicle with them. अगर उनके पास व्हीकल नहीं है तो वो क्या करती है? कैब ही पकड़ेगी ना, ऑटो पकड़ेगी, कैब पकड़ेंगे। अब ऑटो को हमने अगर रोल आउट कर दिया तो कैब पकड़ेंगे, तो ट्रैफिक वहां ज्यादा होगा कि वीकेंड पे ज्यादा होगा, राइट? वीकेंड पे फैमिली का ट्रैफिक ज्यादा होगा, बट नॉर्मली व्हेन फैमिली गोज आउट दे ट्राई टू पिक अप देयर ओन व्हीकल्स। ये हो सकता है, मतलब दीज आर जस्ट assumptions, मुझे भी नहीं पता क्या है, that is going to come out with this all things, right? और कुछ इसके अंदर और कोई पैटर्न? डे निकाल लिया, मंथ निकाल लिया, वीक निकाल लिया, वीक निकाला क्या? नहीं We can निकाला। check the frequency of rides, like अगर जो बंदे मीटिंग के लिए जा रहे हैं, so if we can offer them some offers like on the return ride from the same location or something. वो कर सकते हैं, बिल्कुल वैसा भी एक निकाला जा सकता है। और कुछ निकाल सकते हैं इसके अंदर? फेस्टिवल के टाइम ज्यादा यूज होता है। तो मंथ ऑफ ईयर्स, फेस्टिवल मंथ के बेसिस पे ट्रैक करोगे ना, तो मंथ ऑफ ईयर की कौन से मंथ है जिसपे ज्यादा लोड रहता है? इट मे बी नॉर्मल मंथ्स, इट मे बी दिसंबर टाइम। अगर दिसंबर टाइम है तो यूएस का डेटा ही है, तो यूएस में क्रिसमस और ब्लैक फ्राइडे और में भी बहुत सारी अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं। वहीं पे ही मेरे ख्याल से अप्रैल मई के आसपास में बच्चों की छुट्टियां शुरू होती है, तो एट दैट टाइम आल्सो पीपल यूज्ड टू गो आउटसाइड, राइट? तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, आपको सोचते जाना है और बनाते जाना है यहाँ पे, और वैसे बनाओगे तो बहुत सारा डेटा एनालिसिस इस पे कर सकते हो, करेक्ट? कोई प्रॉब्लम इसमें? तो इसको एक काम करता हूँ, मैं शेयर करता हूँ और ये आप लोगों को देता हूँ। यू मे ट्राई आउट, उसमें सारी चीजों के सॉल्व कर दोगे आप, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है? बट एक्सी असाइन, और ये अभी करना ये भी जरूरी नहीं है, जो भी धीरे धीरे कंफर्टेबल होता जाता है ना एसक्यूएल के साथ में, वो करते जाओ इसको, ठीक है? जितना भी आप इसमें से कर पाते हो। हाउ मेनी पॉइंट्स दीज आर? 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट्स है, तो 8 में से आप जितने पैटर्न निकाल सकते हो निकालो। हम भी इसमें से कुछ पैटर्न्स निकालेंगे, मैं सभी नहीं निकाल के दूंगा आप लोगों को, बिकॉज इट विल बी देन स्पून फीडिंग, बट उसमें से कुछ पैटर्न्स मैं आप लोगों के लिए निकाल के दूंगा। रेस्ट ऑफ देम यू कैन प्रैक्टिस इट एंड देन ट्राई टू फाइंड आउट, ठीक है? 8 अलग अलग पॉइंट एंड देन यू कैन एड ऑन टू दीज पॉइंट्स
टेक इट, डोंट टेक इट एज एन एक्सरसाइज, इसका कोई मार्किंग वगैरह नहीं है मेरे पास में, बट ट्राई टू डू इट ऑन योर ओन आउट ऑफ इंटरेस्ट, तो उससे आप लोगों को अंदाजा आएगा कैसे चलता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आया। अब सबसे बड़ा इसमें चैलेंज क्या आएगा, किसी को कुछ समझ आ रहा है? ये सब हम लोगों ने बोल तो दिया, बट बोलने के बाद इसमें एक चैलेंज है। चैलेंज क्या है? मैंने बोला इसको किससे करना है? SQL से ना, SQL से करना है। SQL में इंपोर्ट करना पड़ेगा ऐसा। करेक्ट, इसको SQL में भेजना पड़ेगा ना आपको। अगर एक्सेल से करना होता तो आप लोग आसानी से कर सकते थे, बट अगर, और इट इज नॉट समथिंग कि ऐसा हमको मिलता है तो हम इसको एक्सेल में कर सकते हैं तो SQL में क्यों करें? अगर एक्सेल में आप कर सकते हो तो SQL में क्यों करें? आपका क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है, और जरूरी नहीं कि इसको SQL में ही किया जाए, बट व्हाई वी आर टेकिंग दिस, क्योंकि फ्यूचर में ऐसी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स आती है जिसमें आपको बड़ा डेटा मिलता है, बिग डेटा मिलता है, जिसके अंदर बहुत सारी रोज होती है, और वहां जाके आपका एक्सेल सब ऑप्टिमल परफॉर्म करता है, बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करता उस टाइम पे एक्सेल। So you may need SQL or you may need in-memory database, in-memory data processing engine like Spark. ठीक है, तो Spark वगैरह की जरूरत लग सकती है जब बहुत सारा डेटा आता है in GBs and all. If you have heavy data in MBs and so, तो भी आपको SQL की जरूरत लगती है। जब छोटा डेटा है, ज्यादा नहीं है, 1000-2000 रोज है, 5000 रोज है, तो इट्स ओके टू डू इट इन एक्सेल एज वेल। ठीक है, तो अभी इसको SQL में कैसे भेजा जाए डेटा को? डेटा को SQL में पहले आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, देन यू विल बी एबल टू यूटिलाइज इट, इजंट इट? ठीक है, तो ये मेरे पास SQL, ये मेरे पास एक्सेल खुला है। एक्सेल से इफ यू वांट टू एक्सपोर्ट डेटा टू MySQL वर्कबेंच, तो उसके लिए आपको क्या करना है ना, उसके लिए आपको आपके एक्सेल में ये डेटा वाले टैब में आना है। ये डेटा वाला टैब है, इस टैब में आओगे तो यहाँ पे देखोगे तो ये एक एडिन है, MySQL फॉर एक्सेल। ये एक एडिन होता है, एडिन है जो मैंने इंस्टॉल करके रखा है, आपकी मशीन पे नहीं होगा, ये शुरुआत में नहीं आता है। तो आपको क्या करना है, गूगल करना है MySQL टू एक्सेल। ठीक है, एडिन करोगे तो आपको शायद मिल जाए एडिन, MySQL टू एक्सेल, MySQL फॉर एक्सेल। ठीक है, तो ये आपको एडिन मिल जाएगा यहाँ से, इसको क्लिक करोगे, प्रोडक्ट वर्जन आ गया, माइक्रोसॉफ्ट विंडो आ गया है, और इसको डाउनलोड का बटन दबा दो। ठीक है, 32 बिट इंस्टॉलर है, वो 64 पे भी चलना चाहिए, तो इसको डाउनलोड करोगे तो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, और इसको ओपन करके रन करोगे तो रन भी हो जाएगा। मैं अभी कर नहीं रहा, नहीं तो पता हो सकता है कि मेरा ऑलरेडी जो सेटअप है वो खराब हो जाए, तो आप लोग ट्राई कर लो इसको, इट्स ए स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग। तो ये एडिन आपको डालना है, जैसे आपने डाला, अपलोड किया, यानी जैसे आप इसको इंस्टॉल करोगे, इंस्टॉल करने के बाद आपको आपका एक्सेल रीस्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए? सुन लिया मैंने क्या बोला? वंस यू इंस्टॉल दैट एडिन, तो आफ्टर इंस्टॉलेशन close your all SQL sessions and then restart it, और then डेटा वाले एरिया में आप आके देखोगे तो आपको ये एडिन ऑटोमेटिकली दिख जाएगा। ठीक है, am I clear? आगे बढ़ूं क्या मैं? सर और थोड़ा सा मतलब एक्चुअली कौन ये एडिन जो है, ये व्हाट इज द नेम ऑफ द एडिन? MySQL प्रोडक्ट नहीं, वो गूगल पे आओ, हाँ, यहाँ पे लिखो MySQL टू एक्सेल एडिन। ठीक है, जैसे डालोगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एडिन का, तो ये एडिन मिलेगा, वो एडिन आप डाल लो। ठीक है, चलो अब ये डाला, तो जैसे ही आपने डालने के बाद, इंस्टॉल करने के बाद रीस्टार्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये मिल जाएगा। ये ऐसा साइन देख लेना, ये मिल गया मतलब आपका इंस्टॉल हो गया एडिन। अब क्या करो, इसको क्लिक करो, जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये सेक्शन खुल जाएगा, और ये सेक्शन जो खुल रहा है उसमें आप ये देख पा रही हो क्या चीज है? डेटाबेसेस जो हमने बनाए थे ऑलरेडी, ये इधर जो है मेरे पास, ये मेरे सारे डेटाबेसेस जो मैंने बनाए थे, वही डेटाबेस यहाँ पे भी दिख रहे हैं आपको। ठीक है, मेरा डेटाबेस कौन सा था जिसपे मैं वर्क कर रहा था? मैं वर्क कर रहा था इस पे, है ना? तो इसको डबल क्लिक कर दिया। ठीक है, डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करके इसने स्कीमास दिखा दिए सारे मेरे को। कौन से स्कीमास मतलब वही फोल्डर्स। किस पे काम करना है आपको, आपके ऊपर है। लेट्स से मैं फर्स्ट डीबी पे अभी तक हम लोग काम कर रहे थे, तो वो फर्स्ट डीबी मैंने सिलेक्ट कर लिया कि उसके अंदर मेरे को ये टेबल डालने का है। आपको अगर किसी एग्जिस्टिंग स्कीमा में डालना है तो वो सिलेक्ट कर लो,
एग्जिस्टिंग में नहीं डालना, आपको खुद का कोई स्कीमा नया बनाना है, जैसे यहाँ पे आपको नया बनाना है न्यू स्कीमा का नाम डालना है उबर और टैक्सी, ठीक है, ऐसा भी कुछ डालना आप डाल सकते हो। कलेक्शन वगैरह के ऊपर ज्यादा ध्यान मत दो, ओके करो। देखो टैक्सी नाम का स्कीमा हैज बीन क्रिएटेड, ओके टैक्सी स्कीमा हैज बीन क्रिएटेड, तो पहले वो चेक कर लेते हैं कि हो गया क्या इधर। इस पे आते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं टैक्सी आएगा, और ये देखो टैक्सी नाम का स्कीमा बन गया है। ये हमने नहीं बनाया, ये बनाया किसने, एक्सेल के थ्रू, हमने हेडिंग के थ्रू बनाया है। समझा क्या, है ना? Yes. अभी ये टेबल को एक्सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो चलो हमारा स्कीमा बन गया टैक्सी नाम का, तो टैक्सी नाम का स्कीमा ढूंढो, ये रहा, ठीक है। फिर नेक्स्ट का बटन दबाओ, नेक्स्ट का बटन दबाया, ठीक है। एक्सपोर्ट एक्सेल डेटा टू न्यू टेबल, ठीक है। या तो आपको नए टेबल में डेटा इंसर्ट करना है तो वैसा कर दो, ऐसा बोल रहा है ये, ठीक है। या फिर सिलेक्ट डेटाबेस ऑब्जेक्ट, या फिर आपको कोई ऑब्जेक्ट के अंदर डालना है तो उसको सिलेक्ट करो और उसमें इंसर्शन होगा। बट अभी हमारे पास इसमें कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला बटन दबाया, एक्सेल डेटा को नए टेबल में डालने का, ठीक है। जैसे ही आपने ये दबाया तो आपके पास ये आ गया, क्या आया, सेट द टेबल नेम, टेबल का नाम बताओ कि अभी जो नया टेबल बनेगा उसका क्या नाम रखना है। तो हमको लेट्स से टैक्सी 1 रख देता हूँ ताकि थोड़ा सा आइडेंटिफाई हो जाएगा, मेरे एक्सेल का नाम टैक्सी है तो यहाँ पे टैक्सी 1 रख दिया। कलेक्शन कौन सा चाहिए तुमको, तो वो कलेक्शन तो छोड़ दो, ये तो सब अलग अलग चीजें आ रही है, ठीक है। पिक अ प्राइमरी की, अब ये जो आपने बनाया है इसमें कोई प्राइमरी की आपको डालनी है क्या, कोई प्राइमरी की मतलब जिससे आपको सर्च करना रहेगा वो डालनी है क्या। तो यूज एग्जिस्टिंग की, हमको कोई नया नहीं डालना है, नई प्राइमरी की नहीं डालना है, हम एग्जिस्टिंग की को ही प्राइमरी बनाना चाहते हैं, अगर तो वैसा डाल दो, अगर आपको नहीं है तो ऐसा कर दो, कुछ भी एक प्राइमरी की बन जाएगी इसकी, ठीक है। फिर ये वाला जो टैब रहता है ये बताता है कि क्या हमारा फर्स्ट रो जो रहता है वो उसमें कॉलम के नाम है क्या, तो फर्स्ट रो मतलब ये वाला जो रो है क्या ये कॉलम के नाम है क्या, आर दे कॉलम नेम, स्टार्ट डेट एंड डेट, आर दे कॉलम नेम, तो हाँ ये कॉलम के नेम है। अगर इसको अनचेक करोगे तो ये कॉलम नेम नहीं आएगा, फिर वो ऐसा बन जाएगा। स्टार्ट डेट खुद भी एक रो की तरह ट्रीट होगा, अगर आपने इसको अनचेक किया तो स्टार्ट डेट रो की तरह ट्रीट होने लग जाएगा एज अ डेटा, ठीक है। तो वो डेटा की तरह नहीं है, वो तो कॉलम का नाम था इसलिए हमने इसको चेक कर दिया, ठीक है। फिर ये जो कॉलम था इसका कुछ अलग नाम देना है तो वो दे सकते हो, आपको जरूरत नहीं, मतलब नहीं देना चाह रहा मैं तो नहीं दे रहा, आपकी मर्जी है, ठीक है। एंड देन एक्सपोर्ट डेटा, नो डेटा टू एक्सपोर्ट, देयर इज नो करंट डेटा टू एक्सपोर्ट टू न्यू टेबल, डू यू वांट टू प्रोसीड जस्ट विद द टेबल क्रिएशन, नो अभी डेटा नहीं है। डेटा क्यों नहीं है भाई, डेटा क्यों नहीं आया इसके अंदर, ओके किस लिए नहीं आया मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक गलती करी है, इसको क्लोज कर रहा हूँ मैं। जब भी ये आप ओपन करते हो ना तो आपको डेटा सिलेक्ट करना पड़ता है कि कौन सा डेटा आपको भेजना है, ठीक है। तो पहले सिलेक्ट कर लो उसको, कैसे किया मैं बताऊं आपको फिर से, अगर नहीं समझा हो एक्सेल के अंदर मैंने कैसे किया ये। एक्सेल के अंदर पूरा डेटा सिलेक्ट करना है ना, तो आपको ये टेबल को सिलेक्ट किया, शिफ्ट कंट्रोल और डाउन एरो, शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो, डाउन एरो दबाऊंगा तो सब सिलेक्ट हो जाएगा, और फिर उसके बाद मेरे को राइट वाले भी सिलेक्ट करना है, तो एक मिनट सर, कंट्रोल ए से नहीं कर सकते क्या अपन, कंट्रोल ए से भी कर लो, अपनी अपनी मर्जी है, ये कंट्रोल ए से भी हो जाता है मतलब अपना अपना कंफर्ट लेवल है एक्सेल पे। मैं शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो देन राइट एरो दबाता हूँ, लंबा काम करता हूँ, आपने अच्छा काम बता दिया, कंट्रोल ए कर दिया। बट मुझे ये जो लास्ट वाला जो है ये सिलेक्ट करके नहीं लाना है, इसको नहीं सिलेक्ट करना, ये वाला जो है टोटल और 1 2 2 4, तो फिर मैं शिफ्ट और अप एरो की दबाता हूँ तो इतना आ जाएगा, ठीक है। अब इतना करने के बाद फिर एक्सपोर्ट करो, अभी देखो कुछ फर्क आया क्या, अभी देखो फर्क आ गया, दिखा क्या, आपका डेटा यहाँ पे दिखने लग गया है ना, पूरा डेटा दिख गया जो आपने सिलेक्ट किया था। अब इसमें नल भी है, देखते हैं नल कुछ प्रॉब्लम करेगा क्या अपने को। अब इसको एक्सपोर्ट करना तो एक्सपोर्ट डेटा, अब यहाँ पे देखते कुछ और ऑप्शन भी देता है क्या, क्रिएट टेबल या एक्सपोर्ट डेटा। चलो अभी तो डेटा एक्सपोर्ट कर देते हैं, देखते हैं क्या होगा, मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, जस्ट मैं रन कर रहा हूँ उसको। MySQL अभी इसने क्या बोला, MySQL टेबल टैक्सी वाज नॉट क्रिएटेड ड्यू टू एरर ऑन रो इंसर्शन, प्रेस बैक टू कंटिन्यू। अभी रो इंसर्शन में कुछ तो भी एरर आया है, तो देखो क्या एरर है, एरर क्या आया है, डेटा टू लॉन्ग फॉर कॉलम स्टॉप एट रो नंबर 219 में स्टॉप नाम की जो रो है उस पर कुछ तो गड़बड़ है,
डेटा बहुत बड़ा है ऐसा कुछ बता रहा है। तो 21 नाम की रो स्टॉप कॉलम, तो स्टॉप कॉलम ये रहा और 219 ढूंढना पड़ेगा। तो 219 मतलब नीचे आ जाओ, ऐसे भी आ सकते हो, स्क्रॉल डाउन करके भी आ सकते हो, पेज डाउन वगैरह करके 219 पे आना है। 219 तो वो 219 या 218 कुछ तो भी होगा। स्टॉप किधर गया, एक मिनट में भूल गया स्टॉप वाला कौन सा कॉलम था। स्टॉप तो यही था 219, क्या हो गया 219 पे, ये तो ठीक दिख रहा है, डेटा टू लॉन्ग बता रहा है। शायद ये 219 मतलब 220 होता होगा, तो इस पे ये शायद ज्यादा बड़ा हो गया है जितनी साइज थी उससे। ओके चलो देखते हैं, इसकी साइज से बड़ा हो गया है, एक बार फिर से ट्राई करते हैं, शायद हमने कुछ गड़बड़ करी है क्या। तो 219, हाँ अभी देखो, अभी क्या बोल रहा है कि ये जो हमारा डेटा था वो बहुत बड़ा था लेंथ में, ठीक है, तो उसको फिर बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, कॉलम ऑप्शन, फील्ड डेटा, SQL इंक्वायरी क्वेरीज, तो यहाँ पे यूज द फर्स्ट एक्सेल डेटा रो इम्प्रूव ऑटोमेटिकली माई SQL। ओके कुछ लग नहीं रहा है, ओके अभी तो इसको एक्सेप्ट करो, फिर से मैं ट्राई करता हूँ, देखते हैं कुछ तो गड़बड़ हुआ है। क्या गड़बड़ हुआ है, ओह सॉरी, SQL टेबल क्रिएट हो गई है। सिलेक्ट करना पड़ेगा सर। हाँ बट वो कुछ तो गड़बड़ हुआ, अच्छा सिलेक्ट करना पड़ेगा, डाटा सिलेक्ट करना पड़ेगा। डेटा सिलेक्ट नहीं किया और वो रो के अंदर कुछ गड़बड़ है, ये तो अपने को समझ में आ रहा है। वो मुझे समझ आ गया है कि शायद इसके अंदर लेंथ बहुत ज्यादा है इस कॉलम की, वहां पे उतनी नहीं है। एनीवेज वो अभी उसको एड्रेस सब करने टेबल में ऑल्टर करके चेंज कर सकते हैं क्या, हाँ, मतलब कर सकते हैं, वही मैं कोशिश कर रहा हूँ, नहीं तो अभी देखते हैं इसको कैसे एड्रेस करेंगे। ये एक्सपोर्ट किया, टेबल विथ नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो मैं इसको टेक्सी 1 कर देता हूँ, है ना। ओके और कुछ इसके अंदर है, स्टॉप, फर्स्ट टू चेक स्कीमा यूज एग्जिस्टिंग ऑटो इंक्रीमेंटल डेटा टाइप्स। ओके एक्सपोर्ट डेटा करता हूँ मैं, तो ये क्या कर रहा है, इसमें एरर देगा 219 पे, है ना, टेक्सी 1 नॉट क्रिएटेड, अगेन 219 पे आया है और बता रहा है डेटा टू लॉन्ग फॉर कॉलम, कॉलम के लिए डेटा बहुत बड़ा है ऐसा करके ये बता रहा है। तो इसके दो ही ऑप्शन होते हैं कि या तो हमको कॉलम का नेम जो रहेगा यानी वो जो फील्ड की लेंथ होगी वो बढ़ानी पड़ेगी। फील्ड की लेंथ कैसे बढ़ा सकते हैं हम लोग, देखते हैं कहाँ पे ऑप्शन आता है इसमें। आइदर यू कैन इंक्रीज द टेबल लेंथ, फील्ड लेंथ, और क्रिएट टेबल से कुछ होता है क्या, मतलब हमको ओवरऑल समझ में आ रहा है कि स्टॉप का जो लेंथ है वो छोटा है और उसके अंदर डेटा लंबा है, वो एक प्रॉब्लम दे रहा है। Can we select the column from here? कॉलम तो सिलेक्ट हो गया बट वो कॉलम अकेला जाएगा ना। यस ये डेटा टाइप चेंज कर हाँ सकते डेटा हैं। ये रहा, हाँ करेक्ट। अभी देखो ये बहुत अच्छी चीज आपने बता दी, जैसे ये स्टॉप था, अभी मैंने इसको सिलेक्ट किया तो ये देखो क्या दिखा रहा है, ये वेरकेट 25, मतलब वेरकेट का मैंने बताया था आपको, वेरकेट का मतलब क्या होता है कि मैक्सिमम ये 25 कैरेक्टर तक लेगा, अगर आप एक डालोगे एक ले लेगा, दो डालोगे दो ले लेगा, बट उसने 25 तक कर लिया। अभी 25 हमारे लिए काम का नहीं है, कम से कम ये कितना होना चाहिए 150, मतलब 150 मोटा मोटा मैंने डाल दिया है, इट्स अप टू यू कि आपको कितना डालना है, बट आई हैव केप्ट इट एज 150, ठीक है। तो नहीं दे रहा ये, इसके ऑप्शंस होते हैं शायद, तो वेयर केयर, अच्छा ये सपोर्ट करता है 45 to 55, तो लेट्स टेक इट 255, ठीक है। नाउ इंस्टेड ऑफ क्रिएट टेबल लेट्स ट्राई टू एक्सपोर्ट इट, तो अभी एक्सपोर्ट करना शुरू करते हैं। अभी भी एरर आया, अब क्या एरर आया देखो, अभी देखो ये अच्छी चीज आई है, वो एरर बदल गया है, वो एरर चला गया, अभी आया है स्टार्ट जो है 230 रो नंबर के अंदर स्टार्ट का डेटा टू लॉन्ग, मतलब स्टार्ट जो है वो भी छोटा पड़ रहा है, स्टार्ट वाला कॉलम, तो स्टार्ट वाले कॉलम को एडजस्ट कर लो, इसको सिलेक्ट किया, ये भी वेरकर 25 है बट शायद वो बड़ा होना चाहिए तो उसको 255 कर दिया। गाइस समझ में आ रहा है क्या किया मैंने, एनीबॉडी? यस Yes, सर sir, आ रहा है। अभी देखो ये हो गया, ये दो प्रॉब्लम थी जो सॉल्व हो गई है, ठीक है। रिपीट करना है क्या मेरे को, ये बताओ, जब भी रिपीट कर देता हूं मैं। अमय, भावना, दीपक, इरशाद, मनीष, सार्थक, श्रुति, क्लियर है सर। क्लियर है ना? तो एक बार MySQL से पहले स्कीमा क्रिएट किया था
हाँ MySQL से स्कीमा क्रिएट किया था या MySQL पर स्कीमा क्रिएट किया था? ये जो हम लोगों ने एडन यूज किया था, एडिन के थ्रू MySQL पर स्कीमा कैसे डाला था, ठीक है मैं वो दिखाता हूँ। बट अभी फिलहाल एक बार ये देख लेते हैं। तो ये टैक्सी वाला, इसको मैं रिफ्रेश कर लूँ, देख लेता हूँ टेबल आया क्या। और ये देखो यहाँ पे टेबल आ गया है मेरे पास टैक्सी 1 नाम का, ठीक है। अभी ये जो टैक्सी 1 नाम का टेबल आया है, इसको यहाँ से रन करके दिखा देता हूँ मैं। ये देखो मेरा डेटा आ चुका है, ठीक है। ये डेटा यही वाला है, वो आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। अभी एक बार फिर से मैं दिखा रहा हूँ कि कैसे हमने स्कीमा क्रिएट किया था। तो हमने क्या किया ना कि क्लोज करो पहले इसको, ठीक है। अभी मैंने इसको सिलेक्ट किया था हाउ टू क्रिएट अ स्कीमा। तो उसके लिए MySQL पे आए, जैसे इसको क्लिक किया था तो हमारा जो भी सर्वर था उसको कनेक्ट किया हमने, ठीक है। नाउ कनेक्शन जो ओपन किया था तो मेरा माई कनेक्शन ये था, इसको मैंने ओपन किया। एंड नाउ हियर इन द स्कीमा वर्जन, अगर आपको एग्जिस्टिंग स्कीमा यूज करना है, यू कैन यूज एग्जिस्टिंग स्कीमा फ्रॉम हियर। अगर वो एग्जिस्टिंग यूज नहीं करना है तो देन यू कैन यूज क्रिएट न्यू स्कीमा। जैसे ही आप यहाँ डालोगे तो मिल जाएगा, ये नया स्कीमा बन जाएगा। न्यू वन हैज बीन क्रिएटेड। यहाँ पे आके चेक कर लो, ये रहा न्यू, ठीक है। अभी इसमें कुछ भी नहीं है। एक्सपोर्ट करना है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ पूरी प्रोसेस। तो न्यू वन आ गया है, उसको सिलेक्ट करो, नेक्स्ट का बटन दबाओ। जैसे नेक्स्ट का बटन दबाओगे तो या तो ये बोलेगा सिलेक्टेड टेबल में डालना है या फिर नया बनाना है। तो हमने बोला नया टेबल बना दो, तो नया टेबल बना रहा है। अब नया टेबल बनाते टाइम पे हमको प्रॉब्लम पता था कि स्टार्ट वाला जो रहेगा, जो स्टार्ट वाला कॉलम है, इसमें 25 कैरेक्टर बाय डिफॉल्ट आया है, उसको नहीं 25 नहीं, हमको बड़ा चाहिए ये, तो 255 डाला। इसी तरह से स्टॉप में भी सेम प्रॉब्लम आएगा, तो स्टॉप में भी हमने 255 डाला और देन एक्सपोर्ट डेटा कर दिया। ये हो गया, डन। सिंपल है, बहुत इजीली गया। अभी न्यू के अंदर देख लो, रिफ्रेश करके आया क्या टेबल, ये न्यू में भी टेबल आ गया। is it always like only one table can be exported at once? हाँ अभी वन टेबल, I mean we can write some script and all, पर उसके लिए फिर आपको डेटाबेस से कनेक्ट करना पड़ेगा एक्सेल को। तो उसके लिए फिर ये कनेक्शन वाले टैब पे आपको वर्क करना पड़ेगा। इसमें मल्टीपल टेबल एक्सपोर्ट करने के ऑप्शन नहीं है हमारे पास में, क्योंकि हम वर्क कर रहे हैं एक्सेल के साथ पे। तो एक एक्सेल ही काम कर रहे हैं ना, एक टेबल ही काम कर रहे हैं ना। सर इसी एक्सेल में अगर अलग-अलग टैब्स होंगे तो वो लेगा उसको, उसके भी ऑप्शंस आते हैं, यू नीड टू जस्ट एक्सप्लोर इट। बट हो जाता है, वो भी होता है, बट उसमें फिर आपको देखना पड़ेगा मल्टीपल टैब है, वो कनेक्ट करने एक दूसरे के साथ में कैसे करना है, ठीक है। आता है वो भी, यू जस्ट नीड टू एक्सप्लोर इट अ बिट। चलो अभी ये हुआ, डेटा आ गया हमारे पास, ठीक है, ये आ गया। अभी कोई भी आप टेबल में से डेटा ले सकते हो। नाउ इट्स अप टू यू कि हम लोगों को कैसे करना है, ठीक है। अभी हमने टैक्सी 1, तो ये रहा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टैक्सी 1 और टैक्सी 1, ये सिलेक्ट क्वेरी दबाई, डेटा हमारे सामने आ गया। नाउ अगर आपको अलग अलग एक्टिविटीज करनी है, जो कि मैंने आपको बताई, अभी 5-7 पॉइंट हम लोगों ने लिस्ट आउट किए ना, अभी इनके ऊपर काम करना है तो कैसे करोगे, तो ये आपको देखना पड़ेगा। एवरेज डिस्टेंस ऑफ अ ड्राइव, तो पूरे ड्राइव का एवरेज डिस्टेंस निकालना है, मैक्सिमम निकालना है, मिनिमम निकालना है, तो वो कैसे निकालोगे। कुछ मेरे पास ऑलरेडी बना है, मैं आपके सामने ओपन करके वो क्वेरी रन कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाएगा, है ना। तो उसको मैं थोड़ा 2-4 क्वेरीज आपको रन करके दिखाता हूँ, देन यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन, ठीक है। लेट मी ओपन एसक्यूएल क्वेरीज। तो मैं आपको एसक्यूएल क्वेरीज वो शेयर करता हूँ, मेरे पास अभी हिंदी नहीं है वो, बट अभी इसमें अगर आपको रन करना होगा मैक्सिमम मिनिमम, तो वो कैसे करोगे। सपोज मैक्सिमम डिस्टेंस टेबल, अभी नाउ यू हैव टू टेल मी कैसे क्वेरी लिखेंगे हम लोग। एग्रीगेट फंक्शंस, मैक्सिमम डिस्टेंस बाय वन जर्नी। सर ये सिलेक्ट मैक्स ऑफ माइल्स, ये स्टार के साथ आया है ना। हाँ वो ये स्टार और वो स्टार कंफ्यूज नहीं करना। हाँ
टैक्सी 1 टैक्स 1 टैक्सी डॉट टैक्सी 1 बस। ग्रुप बाय ग्रुप अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं ना, ओके ठीक ये क्या दिक्कत है? सिलेक्ट, कुछ गड़बड़ है? अच्छा ये शायद स्टार में लिखा है इसको। ओके सर शायद उसको यहाँ पे ना कोई कोड्स प्रॉब्लम में है। लिखना पड़ेगा शायद। हाँ कोड्स में लिखना पड़ेगा। अभी ले लिया उसने। अरे नहीं ये नहीं लिया। प्रॉब्लम तो नहीं है। नहीं नहीं नल का नहीं है। इसको कैसे लिखेंगे? कोड्स में नहीं लेता है ये। माइल्स माइल्स सिलेक्ट कर रहा है। माइल्स स्टार कैसे लेगा ये? ये स्टार का कुछ प्रॉब्लम आया है इसमें, इसका क्या तरीका था? इसके दो तरीके, या तो इनको रीनेम कर दो कॉलम्स को। हाँ और क्या तरीका था इसका? एक मिनट, इसको मैं एक बार ये करके देखता हूँ कि क्या ले रहा है एक्चुअली। ले तो यही रहा इसको। रीनेम आई थिंक सबसे सही रहेगा। हाँ रीनेम करना ही सही रहेगा, बट रीनेम के अभी रीनेम करके देख लो इसको। बट वो अल्टर टेबल के लिए भी वो कॉलम लेना चाहिए ना इसको। कॉपी फुल नेम, लेट्स ट्राई दिस। इसको इसका तरीका था, आई फॉरगॉट इट। ओके एज करके यूज कर सकते क्या? एज नहीं एस के लिए भी इसको आइडेंटिफाई करना चाहिए ना उसमें। एक काम कर लेते हैं, फिलहाल तो काम चलाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से ही हटा देता हूँ, वो सबसे इजी तरीका होगा, ताकि हम लोग उस पर फोकस कर पाए। और मैं इसको कैसे लिखेंगे उसका तरीका आपको याद करके बताता हूँ, कैसे ये स्टार्स को हटाया जा सकता है। तो ये हो गया है अपने पास। ये यही डेटा क्लीनिंग प्रोसेस होता है, एंड यहीं पे बहुत परेशानी आती है डेटा साइंस स्ट्रीम में। ऑलमोस्ट 80% टाइम जो रहता है ना डेटा क्लीनिंग में जाता है लोगों का, जितने भी डेटा साइंटिस्ट रहते हैं। सो वी हैव टू बी फॉर्मेटेड, इसके अंदर बहुत टाइम जाता है। ठीक है, एक्सपोर्ट टेबल हमने कर दिया, और टैक्सी अंडरस्कोर न्यू करता हूँ मैं। ठीक है, देन स्टार्ट को मेरे को चेंज करना है 255, स्टार्ट को चेंज करना है 255। एक्सपोर्ट डेटा जाएगा किसमें ये पता नहीं मेरे को, शायद न्यू वन में जा रहा है। हाँ न्यू वन में जा रहा है। चलो ये गया। अभी न्यू वन में आके देख लेता हूँ। तो स्टार न्यू वन में हमारे पास क्या है? टैक्सी न्यू है ना। तो न्यू वन एंड देन टैक्सी अंडरस्कोर न्यू, ये रन हो गया। अभी इसके अंदर हम लोग मैक्स करके देखते हैं। तो मैक्स ऑफ माइल्स, तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल इन वन जर्नी इज 310 किलोमीटर। एक जर्नी ने इतना किलोमीटर ट्रेवल किया है। ठीक है, अभी अगला बताओ और क्या रन कर सकते हैं? एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल। ठीक है, क्योंकि एवरेज जो रहेगा हमने देखा था कि ड्राइवर्स के लिए बहुत जरूरी था। एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल करना है, कैसे करोगे? सिलेक्ट एनीवन। AVG for average. Yes. Miles Miles. from new1 dot taxi underscore new1 dot taxi. ठीक है, ये एवरेज। तो ये आप बता सकते हो ड्राइवर को कि हमारी ये जो कैब चलती है उसका ऑन एन एवरेज
एक कैब जो रहता है या एक ड्राइव जो रहता है वो लगभग 10 किलोमीटर चलता है। अगर ये 10 किलोमीटर चलता है तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा ना कि उसको एक अंदाजा हो जाएगा बताने के लिए कि भाई हमारे पास जो भी टैक्सी चल रही है वो अच्छा खासा किलोमीटर चल जाती है पर कैब। ठीक है, दिस इज हाउ इट वर्क्स। और क्या ले सकते हैं इसके अंदर जो क्वेश्चंस थे हमारे उसमें से? अभी ग्रुप बाय वगैरह हमारे पास नहीं है, बट व्हाट एल्स कैन बी टेकन फ्रॉम हियर? मोस्ट पॉपुलर स्टार्टिंग डेस्टिनेशन, कैन यू डू इट? यस सर। बताओ। मोस्ट पॉपुलर स्टार्ट सिलेक्ट मोस्ट पॉपुलर स्टार्टिंग डेस्टिनेशन मतलब जो Yes, स्टार्टिंग yes. पॉइंट है सबसे पॉपुलर कौन सा है? सिलेक्ट Select. स्टार बट वही आएगा सर, वो काउंट स्टार आएगा और काउंट स्टार को भी वही करना पड़ेगा, ग्रुपिंग लेना पड़ेगा। काउंट स्टार फ्रॉम स्टार्ट एक कॉमा काउंट स्टार करिएगा, स्टार्ट कॉमा काउंट स्टार ग्रुप बाय स्टार्ट न्यू वन डॉट टैक्सी अंडरस्कोर न्यू ग्रुप बाय स्टार्ट। भाई मैं आपको कल बताऊंगा। ठीक है, ये ग्रुप बाय स्टार्ट आपने कर दिया। ये ग्रुप बाय क्या होता है ना, तो ग्रुप बाय मल्टीपल एंट्रीज को वन टाइम लिखने के काम आता है। मैं आपको बताऊंगा ग्रुप बाय डिटेल में कल, बट ये इसका सॉल्यूशन है। मोस्ट इसको ऑर्डर बाय भी करना रहेगा ना, हाँ, ऑर्डर बाय हाँ, में order- काउंट ऑर्डर बाय काउंट स्टार डिसेंडिंग कर देंगे तो उससे स्टार्टिंग, हाँ वही करने वाला था मैं भी। तो स्टार्टिंग पॉइंट ये हमारे पास मोस्ट पॉपुलर स्टार्टिंग पॉइंट आ गया। बट इसमें एक चैलेंज हमारे पास ये है कि ये जो सब दिए हुए हैं ये सब रैंडम ऑर्डर में है। हमको तो मोस्ट पॉपुलर चाहिए। मोस्ट पॉपुलर के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको सॉर्ट करना पड़ेगा। अब सॉर्ट के लिए कोई और मुझे बताइए कि कैसे सॉर्ट करूंगा मैं? सॉर्ट कैसे करेंगे इसको? सर देयर इज हियर इज वन क्वेश्चन। ऑर्डर बाय लिख सकते हैं, किससे सॉर्ट करना है ऑर्डर बाय। कहाँ पे लिखूं मैं? हाँ यहाँ इसके बाद में ऑर्डर बाय जैसे स्टार्ट ASC या काउंट ASC। स्टार्ट पे ऑर्डर बाय करूं या काउंट? अच्छा ऐसा। हाँ मतलब कॉलम नहीं और उसके बाद उसको पता नहीं चला किसके बेसिस पे ऑर्डर करना है। ऑर्डर बाय फिर उसके बाद स्टार्ट ASC। स्टार्ट ASC असेंडिंग मतलब वो उसने ऑर्डर बाय करा है, बट वो इसके बेसिस पे ऑर्डर कर दिया। AA वाले पहले आ गए, BB वाले उसके बाद आए एंड C वाले आए, ऐसा ऑर्डर किया। तो ऑर्डर इसने इसके बेसिस पे किया है। हाँ अगर काउंट के बेसिस पे करना तो काउंट आ जाएगा स्टार्ट की जगह। काउंट पे स्टार्ट करूं मैं, क्या करूं एग्जैक्टली बताओ? काउंट करूं? काउंट नाम का कोई फील्ड ही नहीं है। काउंट पे स्टार्ट करूं? अभी चलता है, देखो हुआ क्या? हो गया क्या? बस ये असेंडिंग की जगह डिसेंडिंग कर दो। सर वन क्वेश्चन। हाँ सर काउंट स्टार को भी मैक्स लिख पाएंगे क्या? जैसे कि इनके स्टार्ट में काउंट स्टार ले रहे हैं, मैक्स ऑफ काउंट स्टार। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने सामने सिस्टम है। लेट्स ट्राई इट। इफ इट वर्क्स इट वर्क्स, इट डज नॉट इट डज नॉट। तो ये देखते हैं ग्रुप बाय स्टार्ट, काउंट स्टार्ट, इसको मिक्स कर दें। यस सर, वो कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, देयर विल बी वन रो ओनली। नहीं चला, इनवैलिड यूज ऑफ ग्रुप फंक्शन। ओके नहीं चला, ठीक है। चलो अभी ऊपर वाला समझा, ये वाला जो था इसके अंदर आपके पास मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन आ गए, मतलब कैरी जो है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर डेस्टिनेशन है। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? दोज हु आर न्यू टू SQL पूछो क्वेश्चन। आप लोगों के ही फोरम में अभी बेसिक क्वेरीज ही चल रही है सब। Sir, shouldn't we use the limiting so that only the one answer come? Very nice. Yes. Very nice. So let's try it out. Sort with limit. कहाँ पे लगाना है मेरे को? मैं लगाऊं? Yes, sir. Top 5.
top 5 destination. Yeah, if you want top most destination, you can do top 5 most popular starting. Yeah. स्टार्टिंग और डेस्टिनेशन कैसे हो सकता है? स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। क्लियर है? इसको सेव कर देता हूँ मैं, तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा। इसका नाम क्या रखा जाए? ठीक है, अभी इसमें कोई प्रॉब्लम? टॉप 5 स्टार्टिंग डेस्टिनेशन आ गए। नाउ सिमिलरली स्टॉपिंग डेस्टिनेशंस। स्टॉपिंग डेस्टिनेशंस के लिए क्या होएगा? स्टॉप यूज करेंगे, सेम चीज करेंगे, सिर्फ स्टार्ट की जगह स्टॉप कर देते हैं। ग्रुप बाय स्टॉप। ग्रुप बाय में बताऊंगा कैसे होता है वर्क, सो जस्ट बेयर विद मी। कुछ गड़बड़ हुआ है? क्या बता रहा है प्रॉब्लम? इसको क्या है? लाइन नंबर 5। सेमीकोलन ऊपर वाले में सेमीकोलन लगा दीजिए, कभी उससे प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा? नहीं कुछ तो क्या बोल रहा है ये? यू हैव एरर इन एसक्यूएल सिंटैक्स, चेक द मैनुअल करस्पॉन्डिंग। इसका प्रॉब्लम है, फिर मैं बताता नहीं। सिलेक्ट स्टॉप काउंट फ्रॉम न्यू टैक्सी। ओके, कुछ इसमें गड़बड़ है। स्टॉप यहाँ पे आना चाहिए, काउंट स्टॉप फ्रॉम टैक्सी वन न्यू, ग्रुप बाय स्टॉप, ऑर्डर बाय काउंट स्टार डिसेंडिंग दिस। ओके, लेट्स ब्रेक इट इनटू स्मॉल पीसेस। ऑर्डर बाय भी हटाया, ग्रुप बाय तो करते हैं, ये चलता है क्या? स्टॉप हमारे काउंट सर स्टॉप कीवर्ड भी है क्या? हाँ, इसको stop अगर चेंज कर दिया तो एज कुछ करके, मतलब काउंट स्टार जो है इसको एज करके कुछ नहीं, बट अगर ऐसा है तो स्टार्ट भी कीवर्ड था ना, वो क्यों चला? ये काउंट की बात कर रहे हो सर। सर ये ऊपर वाले को एक बार सेमीकोलन लगा के देखिए ना, 18 नंबर पे। हाँ सॉरी गॉट इट, यही वाला, यही एरर है, यही एरर है, ये मिस कर दिया था मैंने, वही मैं बोला ना, ये हटाया, ये चला, अब हो जाएगा। एक्चुअली क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या हुआ है कि जब सेमीकोलन नहीं लगाया था ना मैंने, तो वो इस लाइन को और इस लाइन को एक ही लाइन समझ रहा था। ये देखो अभी रन हो रहा है बराबर। ठीक है, तो मैं पूरी कॉपी करता हूँ। ये एक बहुत बेसिक मिस्टेक है जो हम लोग करते हैं, पर समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो हम तो सर रोज करते हैं इसलिए आपको समझ गया जल्दी। तो ये जो कॉलम था ना, ये नहीं लगाया था, तो ये मिक्स हो गए थे दोनों आपस में, और इसलिए वो सिस्टम समझ नहीं पा रहा था कि क्या चीज है वो। तो स्टॉप सिर्फ रिप्लेस किया मैंने। टॉप 5 आ गए, एंडिंग डेस्टिनेशन आ गई, ये स्टॉपिंग डेस्टिनेशन। ठीक है, तो अभी हमारे पास पेयर भी आ गया है, कैरी आ गया और कैरी आ गया, दोनों साइड कैरी है, इधर भी कैरी है, इधर भी कैरी है। कैरी इज द मोस्ट पॉपुलर हियर एज वेल, एंड कैरी इज मोस्ट पॉपुलर स्टॉपिंग डेस्टिनेशन एज वेल। ठीक है, ये हो गया। और कुछ कर सकते हैं इसमें से हम लोग, जो अभी फिलहाल हो सकता है विद गिवन एवरेज डिस्टेंस हो गया, मोस्ट पॉपुलर स्टार्टिंग डेस्टिनेशन पॉइंट हो गया, पर्पस पे भी ग्रुप बाय लगेगा। ठीक है, आई मीन ऑलमोस्ट एवरीथिंग हियर नीड ग्रुप बाय नाउ, तो वो ग्रुप बाय लगता है इसके लिए। तो अभी मैं उसके लिए आपको एक ग्रुप बाय बता नहीं रहा हूँ। ठीक है, ग्रुप बाय हम लोग कल डिस्कस करेंगे, और फिर बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो ट्राई करेंगे सॉल्व करने की। मीनवाइल जिनको ये आता है दे कैन ट्राई इट और सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, तो आज आपका काम क्या रहेगा? असाइनमेंट्स टाइप ऑफ बोला जाए तो क्या रहेगा, तो ये मैं आपको भेजता हूँ उबर, ये जो डेटाबेस है ये आप लोगों को मैं व्हाट्सअप कर रहा हूँ, डेटा सेट, एंड एट द सेम टाइम आप लोगों को मैं शेयर करूंगा डेटा सेट के साथ में। आप लोगों को करना क्या है, ये MySQL वर्कबेंच तो आपने देखा, MySQL वर्कबेंच की जो मैंने स्क्रिप्ट बनाई है वो आपको भेजता हूँ। देन आपको क्या करना रहेगा,
जो एडिन मैंने बताया है वो एडिन आप लोग डाउनलोड करके देख लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो बता दो, तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद इसके ऊपर वर्क करने की कोशिश करो टैक्सी डेटा पे। क्लियर? कोई डाउट है अभी इसमें? एनी डाउट? कुछ भी प्रॉब्लम रहती है आप लोग व्हाट्सएप पे पिंग करो, एंड देन व्हाट आई एम सेइंग कि जो भी आपका प्रॉब्लम रहता है आप कॉमन ग्रुप पे रखो। कॉमन ग्रुप पे रखोगे तो आपके साथ जो बाकी के लोग हैं उन लोगों को भी सेम क्वेश्चन पता चलेगा, सो दे मे हैव आल्सो द सेम प्रॉब्लम। तो वो उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी एट द सेम टाइम। इफ दे नो द आंसर तो वो आप लोगों को हेल्प भी कर देंगे सॉल्व करने के लिए, तो आंसर थोड़ा इजी होगा। दैट इज कॉल्ड एज कम्युनिटी। तो कम्युनिटी वही होता है, उसके अंदर बहुत से लोग जुड़े होते हैं और आपस में एक दूसरे को हेल्प भी करते हैं। If nobody is answering, I will also answer your question as and when I get time. ठीक है, चलेगा? अभी कोई क्वेश्चन हो तो पूछो जल्दी फटाफट। नो क्वेश्चन? करके देख लेते हैं। सर ठीक एक है। क्वेरी है, ये सारे सेशन का जो भी वीडियो है एक पर्टिकुलर लोकेशन या कहीं पे भी तो हो रहा होगा, तो क्या वो लोकेशन शेयर नहीं कर सकते ताकि हम जब चाहे ये ट्रेनिंग का वीडियो बोल रहे हो? हाँ 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 हाँ, वीडियो जो रहेगा ना, अभी कुछ यूट्यूब रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही थी इसलिए थोड़ा अप एंड डाउन था। अभी उसको सॉर्ट आउट करके एक जगह पे डालेंगे सारे वीडियो। अभी तो आप लोगों के लिए इसलिए भेज रहे हैं ताकि समहाउ जो है आपका काम हो जाए, फिर उसको सभी को ऑर्गेनाइज करके डालेंगे। वैसे वो प्लेलिस्ट बना है बट उसमें प्रॉब्लम आ रहा है यूट्यूब की प्लेलिस्ट में। यस सर, वही हो रहा है कि मतलब कभी भी कोई एक वीडियो अगर मिल जाता है ना फिर दूसरा सर्च करना पड़ता है। सर्च को करना पड़ता है, वो तो प्लेलिस्ट है ना। प्लेलिस्ट नहीं, जैसे उस पे जो आता है अभी बिगनालिटिक्स में जाके देखता ग्रुप पे उसमें जो है जो सीक्वेंस में आता है उस सीक्वेंस में, जैसे कि उसमें फिर इंटर्नशिप वाले भी आते हैं, ये भी आते हैं, सारे वीडियोस आते हैं। नहीं सी जो YouTube चैनल है ना, उस YouTube चैनल, हाँ उसमें वो बना रखा है। बिगनालिटिक्स यहाँ से उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है ना, ये आया बिगनालिटिक्स आया। इसको आप ओपन करोगे तो यहाँ पे आया करो प्लेलिस्ट में। ये प्लेलिस्ट में आया तो आपके पास ये तीनों बने अलग अलग। अभी MySQL वर्कबेंच के कुछ रिकॉर्डेड वीडियो भी डाल रखे हैं। अच्छा, वैसे आप लोगों को एक्सेस होगा उस प्लेलिस्ट का, प्लेलिस्ट बना रखा है पूरा, या प्लेलिस्ट आई डोंट नो उसको प्राइवेट कर रखा है क्या। तो ऐसा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसका ऐसा प्लेलिस्ट जैसे इंटर्नशिप प्रोग्राम है ना, तो उसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है पूरा 12 के 12 वीडियोस का। इसको ओपन करते हैं तो ये सारे वीडियो यहाँ पे 1 बाय 1 दिख जाते हैं। तो ऐसे उसका भी बना रखा है। आई थिंक उसकी ये अभी आप लोगों ने अच्छा हुआ बता दिया इसका शायद। यस सर, आप एक बार वो कर लीजिएगा सो दैट कि हमारे लिए फिर बहुत ज्यादा हेल्पफुल। करेक्ट। वो एक्चुअली शायद वो प्लेलिस्ट का कुछ प्रॉब्लम है, उसको ओपन नहीं किया है, कुछ हुआ है, पर वो यहाँ पे डायरेक्टली प्लेलिस्ट आता है। तो सिर्फ आपको प्लेलिस्ट को जाके प्ले करना है, तो सारे एक के बाद एक मिल जाएंगे, ऐसा ढूंढना नहीं पड़ेगा। ये शायद प्रॉब्लम होगा जो अभी पता चला है मुझे। तो अच्छा है आपने बता दिया, वो कुछ नहीं है, ऐसा ऑर्गेनाइज रहता है वो, है ना। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, ओके, ऑल राइट, थैंक यू ऑल एंड हैव अ गुड डे। कल फिर मिलते हैं, इसी में आगे बढ़ते हैं, है ना। Thank you, sir. थैंक यू सर, गुड डे सर। थैंक यू, गुड डे।